Good evening, everybody. This is Pawan Agrawal welcoming you all for this session. We are glad that you all are here and wish you all a very happy new year to you and your family. Uh, the new year, as every time, brings new hope and new vision, new aspirations. एंड वी लुक फॉरवर्ड कि नया साल है तो कुछ नया और अच्छा होगा एंड वी all as Invest Guru team hope that you and your family have very good this new year and all the coming years ahead. Though new year has started with a scare of Omicron, and I believe everybody will be taking precautions already. Everybody would be vaccinated, and now as children vaccination has started, I believe that we all are getting our children also vaccinated. So with this backdrop that new year comes with hope and some concern of the current virus, let's start our presentation today. So in this during this presentation, I'll keep everybody on mute, and once the presentation is over, then we will have a open question and answer session. And at that time, whatever questions you have, whatever feedbacks you have, we will be happy to take and answer your queries. So in the new year, we thought that normally topics remain that what is going to happen in 2022, what is the investment climate looking, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं, नए साल में किस तरह से मार्केट को देखते हैं. So we thought that all every month we talk about that. So let us take something very challenging and something very critical, very important goal to discuss, which normally takes a backseat in general discussions with all our investors. तो जब भी इन्वेस्टमेंट की हम बातचीत करते हैं तो मार्केट ग्रोथ, रेट ऑफ रिटर्न, वेल्थ क्रिएशन, इस पर हम बात करते हैं. और कुछ बातें चिल्ड्रन एजुकेशन, उनकी मैरिज, होम लोन पे करें या इन्वेस्ट करें, एंड उस तरह के क्वेश्चंस में हम टाइम स्पेंड करते हैं. So this time we have taken the topic, your most challenging financial goal is yet to come, and this is very critical financial goal that we are talking about, and the most challenging to actually plan for. और जितने भी इन्वेस्टर्स से हम बात करते हैं, बहुत ही रेयर, बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टर्स हैं जिनकी प्रिपरेशन है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के लिए, या जो इस गोल के लिए टू सम एक्सटेंट रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं. Otherwise, most of us are not as prepared for this financial goal, though it is the most challenging goal. So what that challenging goal is and why we want to talk about it in this new year. So what is that goal? That goal could be, is it buying a new house or large house or a dream house, or whether that goal could be children education. क्या वो बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग गोल है? यस है, लेकिन क्या वो सबसे डिफिकल्ट गोल है हमारी लाइफ का? शायद नहीं. बच्चों की शादी, वो भी नहीं. कोई बड़ी लग्जरी कार या कोई इंटरनेशनल वेकेशन, क्या ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग या बड़े गोल्स हैं? Yes, definitely some of these goals are very big to achieve, like buying a house itself takes lot of money, and if we are taking it on loan, it takes lots of years to repay the loan. But ये सारे goals अमाउंट वाइज बड़े हों या छोटे हों, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग इसलिए नहीं होते क्योंकि नॉर्मली ये गोल्स हम जिस टाइम अर्निंग कर रहे होते हैं, जिस टाइम हम लोग जॉब या बिजनेस कर रहे होते हैं एक्टिवली, उस टाइम पर हमारे ये नॉर्मली ये गोल्स हम पूरे करते हैं.
तो क्योंकि हम एक्टिवली इस पीरियड में अर्निंग करते हैं, तो ये गोल्स हमारे लिए फिर भी रीजनेबली अचीवेबल होते हैं। और दूसरा, ये इसलिए बहुत चैलेंजिंग गोल्स नहीं होते क्योंकि इनका जो क्वांटम है, इनको पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग में टू सम एक्सटेंट डिफाइंड होता है। हम ये अपनी अर्निंग के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि हम 1 करोड़ का खरीद सकते हैं, या हम 2 करोड़ का घर खरीद सकते हैं, या हम 3 करोड़ का घर खरीद सकते हैं, या 5 करोड़ का। मतलब हम अपनी अर्निंग के बेसिस पे घर का साइज़, घर की लोकेशन, घर का बजट डिसाइड कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई बहुत ही क्लियर होती है कि जब भी अ, हमारा बच्चा 18 इयर्स का होगा अराउंड, तो वो ग्रेजुएशन के लिए जाएगा। जब वो 21-22 इयर्स का होगा, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएगा। तो क्योंकि हमें बच्चे की एज पता होती है, तो वो गोल बहुत सर्टेन होता है कि ये गोल एग्ज़ैक्टली मेरा आएगा कब। मतलब यदि आज मेरा बच्चा 10 इयर्स का है, तो मुझे पता है कि एग्ज़ैक्टली 8 इयर्स बाद मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। ये ज़रूर है कि ये अनसर्टेन होता है कि बच्चा एग्ज़ैक्टली कौन-सी पढ़ाई पढ़ेगा, कौन-सी एजुकेशन करेगा। इंजीनियरिंग करेगा तो उसके लिए शायद 25-30 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। मेडिकल करेगा तो शायद उसको 50 लाख 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन पढ़ाई थोड़ा अमाउंट का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एग्ज़ैक्टली मुझे पैसा कब चाहिए होगा, ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है। बच्चे की शादी भी यदि हम प्लान करते हैं, तो भी एक आइडिया होता है कि यदि बच्चा 22-23 तक की एज तक पढ़ेगा, 2-3 साल कुछ वर्क करेगा यदि वो उसको जॉब करना है तो। तो 25, 26, 27 से पहले नॉर्मली इस समय शादियाँ बच्चों की नॉर्मली पेरेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि 22-24 तक तो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं। तो ये आइडिया है कि आज यदि मेरा बच्चा 10 इयर्स का है, तो मुझे पता है कि 15, 16, 17 साल तक अप्रॉक्सिमेटली बच्चे की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आज कोई मैरिज यदि किसी की सोसाइटी में उसकी फैमिली में यदि एक पर्टिकुलर बजट के साथ करते हैं, कि एक आइडिया होता है कि अच्छा इस बच्चे की शादी में 25 लैक्स का एक्सपेंस होगा या हम कर सकते हैं, या 30 लैक्स का या 35 लैक्स का। ऐसा नहीं है कि हम से 25, 30, 40 लैक्स का बजट बनाएँ और उस शादी के ऊपर हम फिर 1 करोड़ या 2 करोड़ खर्च करें। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हर फैमिली के माइंड में अपनी स्टेटस, अपना बजट और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एक बजट होता है माइंड में, कि अंदाज़न इतने में हम शादी करेंगे। तो बच्चों की शादी के लिए बजट भी ऑलमोस्ट डिफाइंड होता है, और ऑलमोस्ट ये भी पता होता है कि 15, 17 या 18 या 12 इयर्स के बाद अंदाज़न इस पैसे की ज़रूरत होगी। और एक बार वो जब गोल पूरा हो जाता है, तो बार-बार उस गोल के लिए उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब हमने बच्चों की पढ़ाई कर ली, तो बार-बार उन सेम बच्चे को बार-बार नहीं पढ़ाना होता है। एक बार शादी हो गई, तो बार-बार शादी नहीं करनी होती है। उसी तरह से हम कोई बहुत बड़ी गाड़ी 20, 30, 40 लाख रुपए की हम खरीदना चाहते हैं, या कोई हम बहुत सारी फॉरेन वेकेशंस करना चाहते हैं लिमिटेड पीरियड में, तो वो भी हम डिफाइन करते हैं अपने बजट के हिसाब से कि भई मुझे ये करनी है या मुझे नहीं करनी है। और एक बार वो चीज़ पूरी होती है, तो फिर दोबारा बार-बार वो हम उसको नहीं करते हैं फ्रीक्वेंटली। तो ये जितने भी गोल्स हैं, ये बजट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से हम इनको या तो एडजस्ट कर लेते हैं, और नहीं तो हम यदि एडजस्ट नहीं करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ के लिए अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह का लोन भी ले लेते हैं। तो घर के लिए होम लोन, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए लोन, वो तो बैंक से मिलते ही हैं। आजकल लोग बैंक्स प्रमोट करती हैं कि मैरिज के लिए भी आप लोन ले लीजिए, कार के लिए तो लोन देते ही हैं, वैकेशन के लिए भी लोन शुरू हो गए हैं। तो इन सब गोल्स के लिए हम लोन भी एक्चुअल में ले सकते हैं, यदि हम बजट के बियॉन्ड हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो। तो ये सारे गोल्स उतने चैलेंजिंग नहीं हैं, दे आर रीज़नेबली अचीवेबल बिकॉज़ दे आर ड्यूरिंग आवर वर्किंग पीरियड, and also because we know the timeline and the budget. And lastly, we also know that if there is a shortfall, we can always have a loan for these goals. Now, if this is not the these are not the most challenging goals,
then let me share with you that we believe that retirement planning or retirement, once retirement, is the most challenging goal that we can have in our life. Uh, and when I'm saying retirement planning or retirement goal, uh, I am assuming that we are speaking to investors, individuals who don't have a pensionable job. जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, जिनकी पेंशन डिफाइंड है कि उनको गवर्नमेंट अपनी जॉब में रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, उनके लिए ये शायद सबसे बड़ा चैलेंजिंग गोल नहीं होगा। बट सिंस majority of our investors are into private jobs or they are into their own business, they are self-employed or professionals. So this most challenging goal term remains for the people, those who don't have a pensionable job, जो जब retire होंगे, so they have to actually create their own fund, they have to take care of themselves. So we believe that retirement is the most challenging goal. Now, the question may be that, we see a lot of retired people around us. जो भी लोग retire होते हैं, senior citizens हैं, वो अच्छे से रह रहे हैं. And we don't see that exactly why it is a most, challenging goal for us. So if you all really look at people who are actually senior citizens and who are retired, if they are living off well, then the first and the most primary source of their earning would be actually pension. तो यदि कोई बहुत अच्छी तरह से बिना किसी डिपेंडेंसी के इंडिविजुअल रह रहा है और वो रिटायर्ड है, तो फर्स्ट तो पॉसिबिलिटी ये है कि ही और शी हैज बीन इनटू अ पेंशनेबल जॉब अर्लियर। तो अभी उनको पेंशन आती है, तो डेफिनेटली पेंशन में वालों को प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पेंशन जो आती है वो टाइम के साथ इंक्रीज भी होती है, एंड दैट इज हाउ दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। दूसरा जो कंफर्टेबल आपको सीनियर सिटीजन्स मिलेंगे, दे मे हैव बीन इनटू सम काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस। तो फैमिली का बिजनेस है, बच्चे या और भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, देयर इज अ रेगुलर इनकम एंड either they are working, and even if they are not working, that family business is able to take care of their routine expenses and other expenses. But जो लोग पेंशनेबल जॉब में नहीं थे, जो अब रिटायर्ड हैं और पेंशनेबल जॉब में नहीं हैं, so they, I can say, if they have planned earlier their retirement well, then it is fine. But यदि उन्होंने उस तरह का कुछ प्लान नहीं किया है, then I can tell you that the living is not that great of those people. Either they are living a very modest life, very, very modest life, or they are slightly dependent on their children. तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसकी ना पेंशन आती हो, ना जिसका फैमिली बिजनेस हो, जिसने प्लानिंग भी नहीं की हो और वो रिटायरमेंट बहुत अच्छे से अपना निकाल रहा हो. It is very, 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 very rare to see. Most of the people who don't have a pension income or business in the past, they are mostly to some extent dependent upon their children. Or if they don't want to be dependent on their children, then they are living very modestly. And when I say modestly, I will come to this point that how modest we are talking about and what are the things that other people who are retired and who are well off financially are doing. So we'll cover that point. But the point is that retirement, in our opinion, is the most challenging goal that we can plan for, and reason we will come here. So why retirement is a challenging goal? Because first of all, retirement is going to come for us maybe 5, 10, 15 years down the line. तो जो चीज 15 साल बाद या 10 साल बाद, ये तो हमें डिफाइंड है कि हम 60, 62, 63 के होंगे तब हम रिटायर हो जाएंगे, तो टाइम तो हमें पता है, लेकिन हमारा मंथली एक्सपेंस एग्जैक्टली कितना हो सकता है उस टाइम, दैट इज समथिंग विच इज नॉट एग्जैक्टली नोन टुडे. कि say for example I am 49 today, so when I retire at 60, 62, what exactly my monthly expense as a family, I really can't make out. Second thing is that it is not only the monthly expense which any retiree will be taking care of.
After retirement, there are many other things where our expenses go. And upon in that list, the first that comes to mind is actually healthcare cost. So today we are young, we are fit, we are healthy, but looking at what is happening around the world, uh, so much of hypertension, sugar, and other lifestyle diseases are catching up. We see a lot of people with those kind of issues developing later also. So healthcare cost is something that we cannot define for ourselves. One family can be perfectly healthy throughout their life, and in one family, one person may have healthcare issues where regular treatment or regular medication is needed. So healthcare cost, there may be some kind of therapy which may be needed. A lot of people who have joint issues, who have muscle issues, they are going for physiotherapy. That physiotherapy itself may be costing say 5,000, 7,000, 10,000 a month. So depending upon individual to individual and family to family, apart from routine monthly expenses, the healthcare cost may be very different. One family may be incurring only say 2,000 rupees a month on an average on healthcare, and one family may be incurring 25,000 rupees per month on healthcare. So healthcare cost is something which we cannot foresee today under any circumstance. There is no way to know that. Another expense which will be very crucial and which we cannot foresee today is actually the lifestyle expense. Now, what is exactly is that? Earlier, आज से 30 years पहले, in 1990, the average age of an Indian used to be 58. So the average Indian used to retire at 58, 55, 58. And maybe 10 years down the line, because of low average age, the person, used to live maybe up to 68, 70, 72. So the duration between his retirement and his demise was limited, and during this period there was no major lifestyle change. Lifestyle का मतलब कि those people who retired 25 years back, they did not have a habit of traveling around, to say places like Goa or Andaman Islands and so on, or maybe foreign vacations. तो 25-30 साल पहले उस तरह के वेकेशंस का बहुत कल्चर नहीं था. But today when people are retiring at 60, they are much fitter than the people who were retiring at 60 at that time. And because the average age has gone up, जो average Indian की जो living tenure है, that has gone to above 72 now. मतलब जो पहले 58 था 30 years पहले, वो अब 72 plus हो गया है. But the retirement age is around that only. It was 58 earlier, it is 60, 62 now. But the longevity of individual has increased. ये जो हम 72 की average age की बात करते हैं, it, please understand, it considers all people in the country. So people who are into labor work, they are also, creating this average. So people who are not into physical work, people like us who have a better nutrition and a better, working conditions, our age is actually more than 72 now. So if we look at people around us, who are people like us, we will see that they are living beyond 75, 77, and 80 also. So the age, the longevity which was till 68, 70, 30 years back, today it is 80, 85. And maybe by the time we and many of our investors retire, it may go above 85 also. So how does this age longevity changes my lifestyle? Is that because my life after my retirement is 25 years and not 10 years, I am physically fit, my mind is much fitter, and I want to enjoy the life as a young body and a younger mind as compared to 30 years back. I want to enjoy the life, I want to travel, I want to learn new things, I want to use new gadgets, and that creates a lifestyle which was not exercised or enjoyed by the people 20, 30 years back.
जो 30 साल पहले या 20 साल पहले रिटायर होता है, मॉडेस्ट लाइफ़स्टाइल का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करता है, उसको बहुत ज़्यादा कार का, बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने का, बहुत ज़्यादा खाने-पीने का शौक नहीं होता है। वो एक जो ट्रेडिशनल मेथड है घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, घर के कुछ काम खुद ही करना, तो उस तरह से वो अपनी लाइफ़ को थोड़ा ज़्यादा बिताते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हैं और यदि हम बाहर घूमेंगे, हम घूमेंगे तो ऑब्वियसली कपड़े भी उसी तरह के चाहिए, हमारा टेस्ट भी उसी तरह का रहेगा जब हम एक्सपोज़्ड होंगे नई-नई चीज़ों को। तो लाइफ़स्टाइल कॉस्ट एक्चुअल में मंथली एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। एंड देन कम्स अपार्ट फ्रॉम दिस एसेट रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड रिफर्बिश। यदि पहले मैं 60 का था और 70 पर ही डिवाइस हो जाता है, तो आई डोंट नीड टू रिप्लेस मेनी ऑफ माय एसेट्स। मतलब जो फ्रिज होगा या जो स्कूटर होगा या जो टीवी होगा वो मोर और लेस चल जाएगा। बट यदि मेरी लॉन्गेविटी 20-25 इयर्स की हो गई है, तो जो भी एसेट मेरे घर में, जो भी गैजेट है, जो भी चीज़ मैं घर में यूज़ करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली वो सारा मेरे लाइफ टाइम में मुझे दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा। और वो जो सारा एसेट रिप्लेसमेंट है उसको मैं मंथली एक्सपेंस में काउंट नहीं कर सकता। एंड देन रिपेयर एंड रिफर्बिश। हम घर जब बनाते हैं, हमने सोचा कि हमने एक घर बना लिया, उसके अंदर हम रहने लगे, रिटायरमेंट के बाद रह रहे हैं। बट यदि मेरे को 20-25 साल वो घर यूज़ करना है, तो आजकल का जो टाइप का कंस्ट्रक्शन है उसमें मुझे हर 5-7 साल में घर में पैसा लगाना पड़ता है। तो अगेन वो पैसा भी लगाने के लिए मेरे को अपनी जो रिटायरमेंट फंड मैंने बना लिया है, उसी के अंदर से मैं उसको रिपेयर और रिफर्बिश के लिए यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि अब मेरी रेगुलर इनकम नहीं है, तो जो भी एक रिटायरमेंट किटी बनेगी मेरी, उसी में से मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। एंड जो मैं ऑलरेडी पॉइंट बोल चुका हूँ लॉन्गेविटी, कि यदि 10 इयर्स के लिए ही मुझे आफ्टर रिटायरमेंट रहना है लिविंग, तो मुझे एक लिमिटेड रिटायरमेंट किटी चाहिए। लेकिन यदि मेरे को 20-25 या इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहना है, तो ये डिसाइड करना कि मेरे पास कितना रिटायरमेंट फंड होना चाहिए, इट इज़ नॉट दैट ईज़ी जॉब। क्योंकि यदि मैं 80 तक लिविंग मतलब लाइफ है, तो डिफरेंट रिटायरमेंट फंड चाहिए। यदि वो 85 तक हो जाती है तो डिफरेंट चाहिए और 90 तक हो जाती है बाय चांस, तो और भी ज़्यादा डिफरेंट चाहिए। तो बिकॉज़ मुझे ये नहीं मालूम कि एक इंडिविजुअल फैमिली कब तक सर्वाइव करेगी, तो उसका रिटायरमेंट फंड का डिसाइड करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट मतलब उसको जानना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा देयर आर अदर चैलेंजेस टू आवर चैलेंज ऑफ रिटायरमेंट, वो है सोशल चेंजेस। हिस्टोरिकली पास्ट में फैमिलीज़ जॉइंट फैमिली होती थी। कोई ना कोई बच्चा, लड़का-लड़की जो भी है, वो पेरेंट्स के आस-पास या साथ रहता था, तो थिंग्स वर टेकन केयर ऑफ जॉइंटली। बट अभी न्यूक्लियर फैमिली है, जो रिटायर हो रहे हैं पेरेंट्स, वो कहीं और रहते हैं, बच्चे उनके कहीं और रहते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी घर का एक्सपेंस है वो कंप्लीटली उस फैमिली को ही करना होता है। मतलब पूरी डिपेंडेंसी जो रिटायर्ड पेरेंट्स हैं उनकी खुद के ऊपर ही होती है। मतलब यदि वो अपने ऊपर रखना चाहते हैं तो। बच्चे यदि बाहर हैं, तो डेफ़िनिटली आप साल 2 साल में, 6 महीने में कभी तो आप बच्चों से मिलने जाएँगे। जब भी जाएँगे तो वो एक एडिशनल एक्सपेंस रहता है, क्योंकि मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि यदि आप बच्चों से मिलने बाहर जाते हैं, कुछ पैसा वहाँ भी खर्च करेंगे, आने-जाने में भी खर्च करेंगे। तो all that money will only, increase your expenses. And another social change is, aspirations. When we will meet more people, when we will travel abroad or within the country, we will see more things. और एक जो कॉमन फैक्टर है जो हम सुनते हैं सभी इन्वेस्टर से कि भई इतने साल मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मैंने लग के मेहनत की है, तो कम से कम बुढ़ापे को तो मैं एन्जॉय करना चाहता हूँ। मैं रिटायरमेंट को तो कम से कम एन्जॉय करना चाहता हूँ। तो ये एस्पिरेशन मैं अज़्यूम करता हूँ कि पहले भी पेरेंट्स की या रिटायर्ड लोगों की होती होगी, बट शायद वो उतना डीपली नहीं सोचते होंगे या उतना वोकल नहीं होंगे। लेकिन आज जो मिडल एज्ड पर्सन है, वो तो वोकल है और वो बहुत अनकॉम्प्रोमाइज़िंग है, उसको लगता है कि नहीं पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, तो अब कम से कम मैं अपने रिटायरमेंट को एन्जॉय करूँगा। तो जो एस्पिरेशन है, वो विद टाइम लोगों की बढ़ रही है। देन
with better financial बेटर फाइनेंशियल्स, लोग सेल्फ डिपेंडेंट भी होना चाहते हैं। पास्ट में आई डोंट रिमेम्बर कि इस तरह का पेरेंट कोई सोचता था, बल्कि पहले ये होता था कि बेटा बड़ा होगा तो हमारा ख्याल तो रखेगा ना। तो एक माइंड में रहता था कि बच्चे बड़े होंगे तो कम से कम हमें टेक केयर कर लेंगे। लेकिन अब वो चीज़ उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, अभी तो वो चेंज हो रही है। लोगों को पता है कि बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे और वो हमें टेक केयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं। तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। चैरिटी भी लोग करना चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल वी नो इन आवर एज इन्वेस्टर, दोज हु आर इन्वेस्टर्स who are doing very good work, who we have investor who is running a charity school, in Noida, and there's an investor who is teaching kids. So there are people who are doing charity work also, and this trend is also getting bigger and bigger, that people, once they are well off and they have an active lifestyle, their body and mind is fit, so they want to contribute to the society. एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, वन इज फिजिकल कि आप अपनी स्किल को या अपनी नॉलेज को देते हैं, बट दूसरा ये है कि दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल, कि वंस योर योर नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, तो आपको लगता है कि मैं सोसाइटी में भी थोड़ा फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करूं। सो दैट ट्रेंड इज नॉट बिग एज ऑफ नाउ, but that trend definitely is catching up, and we can see some of our investors already actively doing this. So we believe that as the time passes, more and more people will be contributing to society, physically also and financially also. So all these things and all these situations actually require money, एंड मनी विल बी फाइनाइट एट दैट टाइम। एक बार जो हम अपना किटी बना लेंगे, वो किटी हमारा फिर बड़ा नहीं होगा, वो टाइम के साथ वो यूज ही होगा। और उस किटी को बनाने का, उस रिटायरमेंट फंड को बनाने का चैलेंज एक बहुत टफ है, क्योंकि जितनी भी अभी तक हमने बात किया उसमें कुछ भी चीज एक्चुअल में डेफिनेट नहीं है। और जब डेफिनेट नहीं हो आउटपुट, तो इनपुट को डिफाइन करना एक्चुअल में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एग्जाम्पल लिया है जस्ट टू मेक अ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, कि यदि आज कि हमारा अभी आज क्या मंथली एक्सपेंस होता है अलग अलग चीज़ों में, और किस तरह की हमारी नीड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। कई बार हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, बट यदि मैं ये एज्यूम करूं कि आज एक फैमिली का एक नॉर्मल मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपया है, और इन्फ्लेशन को यदि हम 5% लेते हैं, तो उस केस में मतलब आज यदि कोई 40 ईयर ओल्ड है और उसका 1 लाख रुपए का मंथली खर्चा है, तो आफ्टर 20 ईयर्स उसका जो मंथली खर्चा है विदाउट एनी लाइफ स्टाइल चेंज एंड ऑल दैट, इट सेल्फ विल बी 2,65,000, एंड आफ्टर 30 ईयर्स इट विल बी 4,32,000 पर मंथ। तो जो मंथली मेरा आज 1 लाख का एक्सपेंस है और मुझे लगता है कि आज मैं इतना वर्क करता हूँ तब मैं उसको पूरा कर पाता हूँ, तो यही मेरा एक्सपेंस 20 साल में मोर देन डबल हो जाता है, और 30 साल में मोर देन 4 टाइम्स हो जाता है। 30 साल का ये फिगर हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आज जो 1 लाख का एक्सपेंस है, वो हम ये विजुलाइज करना चाहते हैं कि जब महंगाई बढ़ेगी तो मेरा ये एक्सपेंस 1 लाख का 1 लाख ही नहीं रहता। जब मैं 70 ईयर्स का हूँगा, यदि आज मैं 40 का हूँ और 70 का हूँगा, तो ये 4.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा, जिसमें कि जितने भी हमने फैक्टर्स अभी डिस्कस किए हैं, सोशल चेंजेस, हेल्थ केयर कॉस्ट वगैरह, ये सब अभी मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्योंकि 1 लाख रुपए आज हम अपने खर्चे को मानते हैं, जिसमें हम एक रीजनेबल लाइफ, जिसमें कि कुछ हॉलीडे है, कुछ हमारा मंथली एक्सपेंस है, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। But those do not, this 1 lakh does not consider charity, it does not consider philanthropy, it doesn't consider कि हम इससे अपना घर रिपेयर करा रहे होंगे, अपना पूरा हेल्थ केयर कॉस्ट इससे बियर कर रहे होंगे। ये मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ। दिस 1 lakh इज ओनली फॉर मीटिंग सम एक्सपेंसेस एंड सम काइंड ऑफ लेजर एंड एंटरटेनमेंट। तो ये 1 लाख हमारा एक्चुअल में विद टाइम ये 4 लाख और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। अब यदि हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हम ही अभी हम चलो 1 लाख के हिसाब से प्लानिंग करते हैं,
आई एम नॉट सेइंग 1 लाख रुपी इज एनफ और इट इज लो लेस और इट इज मोर। ये सब आप हर इन्वेस्टर का इंडिविजुअली उसकी फैमिली पर डिपेंड करेगा कि इस 1 लाख को वो 50,000 मानता है, 25,000 मानता है, या इसको 2 लाख रुपए मानता है। ये जो फिगर मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया हुआ है। तो यदि यही 1 लाख रुपए की मुझे एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो जो हमारा फंड रिक्वायरमेंट है, यदि मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पर 9% का रिटर्न आता है, तो आज यदि कोई इंडिविजुअल रिटायर हो रहा है, तो उसको 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, 2 करोड़ का फंड चाहिए आज। उस फंड से यदि वो 2 करोड़ का फंड लेता है, तो अप टू एज 85 तक आज के हिसाब से 1 लाख रुपया उस इंडिविजुअल को 85 ईयर्स की एज तक आता रहेगा, जिसमें हम 5% का इन्फ्लेशन भी एज्यूम कर रहे हैं। और यदि यही कोई पर्सन आज 50 ईयर्स का है और वो 1 लाख रुपी पर मंथ की इनकम एज्यूम करता है आज के हिसाब से, मतलब 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए का एक्चुअल में 1.5 पौने 2 लाख रुपए उसको चाहिए होगा। तो सेम सेम 1 लाख रुपए पर मंथ आज के हिसाब से 50 ईयर ओल्ड को 3.2 करोड़ का फंड चाहिए होगा 10 ईयर्स के बाद। और यदि यही आज कोई 40 ईयर्स का पर्सन इसको टारगेट करता है, तो 40 ईयर्स का पर्सन 20 ईयर्स में यदि वो रिटायर होगा, तो उसको 5.2 करोड़ का उस समय फंड चाहिए होगा 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम के लिए। यदि उसकी कोई हेल्थ केयर इश्यूज हो जाते हैं उस फैमिली को अनफॉर्चुनेटली, या उसको की लाइफ स्टाइल उसकी थोड़ी लेविश है, उसको ज़्यादा घूमने का, ज़्यादा बाहर खाने पीने कपड़े पहनने का शौक है, तो ऑब्वियसली ये जो 5.2 सीआर है या 3.2 सीआर है, ये उस इंडिविजुअल फैमिली को ज़्यादा चाहिए होगा। नाउ ये हम ये सोच सकते हैं कि 10 इयर्स में 3.2 करोड़ तो हम बना लेंगे, या 20 इयर्स में 5.2 करोड़ हम बना लेंगे। लेकिन ये तो एक ही गोल है, इससे पहले भी हमारे बच्चों के गोल होंगे, हमें और भी चीज़ें अपनी फैमिली के लिए पूरी करनी होंगी। तो ये गोल तो सिर्फ इकलौता गोल है, इसके अलावा भी हमारे गोल्स होंगे। तो उन गोल्स को माइंड में रखते हुए हमें ये गोल भी क्रिएट करना है। इस पर अभी हम बहुत कम लोगों की प्रिपरेशन या शुरुआत हम देखते हैं। अ, अभी जो प्रिपरेशन या जो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स है या थॉट प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा थॉट प्रोसेस बोलूँगा, वो मोस्टली अपने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर खरीदने की और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा है। रिटायरमेंट के लिए कम है, लेकिन ये जो 10 इयर्स में 3.2 सीआर है, इसको अचीव करना इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि 10 इयर्स तक हमें एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट करना होता है, तभी हम ये किटी बना सकते हैं। अब कभी-कभी ये एक थॉट आता है कि अ, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसपे हम बैंक एफडी भी कर रहे हैं, हम पेंशन प्लान भी कर रहे हैं। तो ये जो हम 2 करोड़ या 3.2 करोड़ या 5.2 करोड़ का किटी देख रहे हैं, ये हम अज़्यूम कर रहे हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट 9% का रिटर्न आपका इन्वेस्टमेंट बनाता है। लेकिन यदि कोई रिटायरी इसको 9 की जगह 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है, मतलब उसने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, थोड़ा-सा इक्विटी किया, बैंक एफडी की, जो कि नॉर्मली रिटायर्ड लोग करते हैं। तो उस केस में इस कॉर्पस की वैल्यू, ये जो ब्रैकेट में कॉर्पस लिखा हुआ है, वो हो जाती है। मतलब जिसको आज 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, यदि उसका रिटर्न, उसका बैंक है, उसका जो मेन इन्वेस्टमेंट ये 2 करोड़ का है, यदि वो बैंक एफडी में, यदि वो गवर्नमेंट बॉन्ड में है, तो इसका मतलब ये है कि उसको 2.6 या उससे भी ज़्यादा करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा। यदि 10 साल बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ और मेरा इंटेंशन उस पैसे को सेफ रखने का है, एफडी बॉन्ड्स में रखने का है, तो मुझे 3.2 की जगह 4.35 करोड़ चाहिए होगा। और यदि मैं 20 इयर्स के बाद रिटायर होऊँगा, तो मुझे 5.2 की जगह 7.1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए होगा। ये भी तब है जब मैं 6% का रिटर्न एज़्यूम कर रहा हूँ अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आज एफडी का जो रिटर्न है बैंक्स में, वो 5 टू 5.5% है, और आफ्टर टैक्स वो एक्चुअल में 3.54% ही रह जाता है। तो आप ये समझिए कि यदि 4% का ही मेरा रिटर्न आता है आफ्टर रिटायरमेंट, यदि मैं उस तरह के इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मुझे, और मैं 40 साल का हूँ, तो मुझे 7.1 नहीं, एक्चुअल में मुझे 8 या 9 करोड़ का मुझे कॉर्पस चाहिए होगा। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट आज 5.2 करोड़ है, यदि मुझे 9% रिटर्न का इन्वेस्टमेंट करना है,
यही मेरी ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है, जस्ट बिकॉज़ कि मैं 5% रिटर्न के इन्वेस्टमेंट में अपना पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ। तो कहना आसान है कि 5.2 का जगह मैं 9 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर लूँगा। एक्चुअल में उसको करने के लिए जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अभी से। तो आज यदि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए 25-50 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली उसको मैं अचानक डबल कैसे करूँगा? इट इज़ नॉट दैट ईज़ी, क्योंकि मेरी आज भी जो इन्वेस्टमेंट सरप्लस है मेरा, जो इन्वेस्टमेंट करने का अमाउंट है, वो अनलिमिटेड तो नहीं है, वो तो लिमिटेड ही है। तो यदि मैं बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव या बहुत ज़्यादा लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में हूँ और मैं उसमें अपना रिटायरमेंट प्लान करता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए होगा। तो रिटायरमेंट इसलिए और चैलेंजिंग हो जाता है कि एक तरफ तो हमें पता है कि रिटायरमेंट में हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते और हम उसको सेफ रखना चाहते हैं पैसे को। लेकिन जब हम सेफ्टी की तरफ जाते हैं तो हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी और बड़ी हो जाती है, जिसके लिए ऑलरेडी हमारे पास उतना इन्वेस्टेबल सरप्लस नहीं है। तो ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन बन जाती है कि मैं रिटायरमेंट का प्लान करूँ और मैं रिस्क के साथ करूँ और मैं कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा बड़ा कॉर्पस बनाऊँ, या मैं रिटायरमेंट का प्लान सेफ्टी के साथ करूँ। कॉर्पस मुझे और बड़ा चाहिए होगा और इन्वेस्टमेंट मेरे को ज़्यादा करना चाहिए लेकिन मैं कर नहीं सकता। तो दिस बिकम्स अ डिलेमा ऑफ व्हाट टू डू, एंड दिस डिलेमा इटसेल्फ क्रिएट्स अ challenge for retirement planning. So normally what happens in this scenario, जो practically we have observed that whatever assets you have, यदि आपका रिटायरमेंट किटी उतना बड़ा नहीं था और एक्सपेंसेस आपके बढ़ते जाते हैं, तो आपके जो भी अपने एसेट्स हैं, नॉर्मली वो डिप्लीट होने लगते हैं। मतलब आपके पास एक बड़ा एसेट था, आप उससे थोड़े छोटे एसेट में आ जाते हैं, क्योंकि उससे जो मनी आप रेज़ करते हैं, उससे आप अपना इंक्रीज़्ड एक्सपेंस करते हैं। फिर आप उस एसेट से भी छोटे एसेट में आ जाते हैं, क्योंकि अब हर 5-7 साल बाद, 8 साल बाद आपका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है और किटी आपके पास रिटायरमेंट फंड एक्चुअल में उतना बचता नहीं है, इनकम उससे कम हो जाती है। जैसे हमने देखा है 2008-9 में इंटरेस्ट रेट वाज़ 9%, टुडे इट इन बैंक एफडी टुडे इट इज़ 5%। तो यदि किसी का 1 करोड़ रुपया उस समय बैंक एफडी में था, उसको 9 लाख रुपए आते थे, उसका घर का खर्च आराम से चल जाता था। लेकिन आज उसका घर का खर्च 7-8 लाख रुपए की जगह वो आज 14-15 लाख हो गया है और जो उसका इंटरेस्ट है बैंक का उस 1 करोड़ की एफडी का वो केवल 5 लाख रुपए रह गया है। उस पर भी टैक्स लगता है। तो जो इनकम पहले सरप्लस में थी, वो आज डेफ़िशिट हो गई है। डेफ़िशिट होती है तो एक-एक करके लोग अपना एसेट्स को यूज़ करने लगते हैं। पहले फाइनेंशियल एसेट्स यूज़ होते हैं और फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स यूज़ होते हैं। और उसका रीज़न यही है कि अ, वहाँ पर या तो प्लानिंग नहीं थी या पेंशनेबल जॉब नहीं है। अ, उस तरह के सिनेरियो में हम नहीं आए कि हमारे जो एसेट्स बने हुए हैं, वो धीरे-धीरे कम होने लगे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने रिटायरमेंट प्लान को अ, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस एक तरह से रियलाइज़ हो हमें, क्लियर हो कि हाँ, ये वाक़ई इम्पोर्टेंट क्यों है और उस पे हम एक्शन स्टार्ट करें उसकी प्लान के लिए। And how we can plan, I will quickly take up. We have prepared 7 steps for this. तो सबसे पहला तो ये है स्पेशली फॉर यंग पीपल इज दैट पे ऑफ ऑल योर डेट्स। जो भी आपके लोन्स हैं, पहले तो वो खत्म होने चाहिए, क्योंकि लोन्स जब आपके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आपका लोअर साइड पे रहेगा और एक मेंटल प्रेशर अलग रहता है। तो लोन्स को आप पहले पे कीजिए। दूसरा, फैमिली गोल्स जो बच्चों की पढ़ाई है, मैरिज है या और कोई भी आपका फैमिली गोल है, पेरेंट्स के लिए आप कुछ रिटायरमेंट इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रोविज़न बनाइए। अ, तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंसोलिडेट कीजिए। इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारी जगह किया होता है। तो क्योंकि ओवर द पीरियड 20-30 साल का जो करियर होता है उसमें हम एनएससी भी लेते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम भी लेते हैं, हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है, हमारी एफडी भी होती हैं, कुछ हमारा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ म्यूचुअल फंड में होता है, कुछ हमने गोल्ड ले रखा होता है, कुछ हमने किसी दूसरे को पर्सन को लोन दिया होता है किसी नियर एंड डियर वन को। मतलब हमारा जो पैसा है वो नॉर्मली बिखरा हुआ होता है, कुछ रियल एस्टेट में लगा होता है।
तो वो पैसा हमारा बिखरा हुआ होता है। इससे परेशानी क्या होती है कि एक तो हमें टोटल अपनी पैसे की वैल्यू नहीं पता होती किसी भी टाइम की, एग्ज़ैक्टली मेरे पास पैसा है कितना। दूसरा ये नहीं पता होता कि यदि मेरे पास सारा इन्वेस्टमेंट मिला के मेरा सपोज़ 50 लाख रुपया है, तो मुझे ये नहीं पता होता कि हर साल उसपे ग्रोथ रेट क्या हो रही है। क्योंकि कभी मैं अपने सारे टोटल एसेट्स का टोटल करके देखता ही नहीं हूँ। अ, अब मेरा पैसा ना तो मुझे ये मालूम है एग्ज़ैक्टली कितना है, ना मुझे ये मालूम है कि हर साल वो किस रेट पे ग्रो कर रहा है। और तीसरा मुझे ये नहीं पता होता कि कब कौन-सा पैसा मेरा मैच्योर होके किस चीज़ में यूज़ होगा। मतलब ये तो हमें पता होता है कि मेरी पॉलिसी है, लेकिन इस तरह से नॉर्मली कोई भी ट्रैक नहीं करता है कि इस साल मेरे पास इतना लाख रुपया आएगा, इस साल मेरे पास इतना हज़ार रुपया आएगा, इस साल मेरे पास इतना लाख रुपया आएगा और जब आएगा तो इससे मैं इस तरह से इस चीज़ को, इस पैसे को इस गोल के लिए यूज़ करूँगा। यदि मेरे हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स बिखरे हुए हैं, तो गोल्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स को लिंक करना भी पॉसिबल नहीं होता है। और जब हमारा जैसे हम कहते हैं ना कि 5 उँगलियाँ जब जुड़ती हैं, तब मुट्ठी बनती है। मतलब स्ट्रेंथ किसी हाथ में तभी आती है जब आप पाँचों उँगलियों को जोड़ लेते हो। आप खुली 5 उँगलियाँ रखेंगे तो हाथ में उतनी फ़ोर्स नहीं आएगी। उसी तरह से जब आपके इन्वेस्टमेंट बहुत जगह बिखरे हुए होते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का वो एक जो फ़ाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो उसमें नहीं बनती है क्योंकि वो बिखरी हुई चीज़ें हैं। बट जैसे ही आप उसको 2-3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में कंसोलिडेट करते हैं और जब आप उसको ट्रैक करना शुरू करते हैं कि हाँ, ठीक है, अब ये 2-3 चीज़ में ही मेरा इन्वेस्टमेंट है। पिछले साल इसकी वैल्यू 50 लाख थी, इस साल इसकी वैल्यू 55 लाख हो गई है। तो आप फिर उसको फ़ोर्सफुली उस पैसे को अपनी गोल्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कंसोलिडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अ, वन ऑफ द वेरी मेजर एक्सरसाइज़ है जो कोई भी इन्वेस्टर यदि करता है, तो उसके फिर जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एज़ अ फैमिली हस्बैंड और वाइफ मिलके हमारे हिसाब से एक चेकलिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए अपनी रिटायरमेंट नीड्स की। आप 40 के हैं या 50 के हैं या 58 के हैं, इट डज़न्ट मैटर। बट हाउ यू वुड लाइक टू सी you as yourself as retired people that any family can only decide for themselves. कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइज़र आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। आप ही एज़ अ फैमिली ये डिसाइड कर सकते हैं कि भई हमारी जो फैमिली है वो खर्च करने में ज़्यादा यकीन रखती है, बचाने में ज़्यादा यकीन रखती है। कुछ लोग घर का काम हाथ से ज़्यादा करना चाहते हैं। कुछ लोग अपना टाइम और यूटिलाइज़ करके लेज़र के लिए वो हाउसहोल्ड सपोर्ट, मेड्स, सर्वेंट्स इनको रखना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी खुद की क्या नीड्स हैं, खुद की क्या एस्पिरेशंस हैं, उसके हिसाब से ही आप सोच सकते हैं कि भई हमारा एक्चुअल में मंथली एक्सपेंस किस तरह से हो सकता है फ्यूचर में और उसके लिए हम किस तरह से प्रिपेयर करें। अ, जब आपका इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेट हो जाता है, आपकी चेकलिस्ट क्रिएट हो जाती है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को, करंट पैसे को और फ्यूचर अर्निंग्स को, जो हम फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस बोलते हैं। कि बजाय कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करने के जो आपका 20-30 साल के लिए लॉक हो जाए, जिसका मैं एडवांटेज नहीं ले पाऊँ, आप फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करें, जहाँ पर कि यदि आपको अपॉर्च्युनिटी यदि उससे बेटर कहीं मिलती है, तो आप उसमें मूव कर सकते हैं। जहाँ पर टैक्सेशन आपका बेटर हो सकता है, आप मूव कर सकते हैं। जहाँ पर ग्रोथ आपको आ रही है, उस ग्रोथ को आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा एसेट तो ग्रो कर रहा है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो यदि मैंने एसेट पे ये सोचा था ये रिटर्न बनाएगा, ये 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, लेकिन मैं जो ग्रोथ हुई 2 लाख की, उसमें से यदि मैं 20,000 निकाल के यूज़ ही नहीं कर सकता, तो वो जो ग्रोथ थी वो मेरे लिए यूज़लेस हो गई। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हम फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस में करें। बड़ा ज़रूरी है कि हेल्थ केयर कॉस्ट क्योंकि कुछ भी हो सकती है, बड़ा ज़रूरी है कि यदि आज हम हेल्दी हैं, तो कोशिश करें कि हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल आगे भी उसको हम एक्सरसाइज़ करें। क्योंकि हेल्थ जैसा कि हम देखते हैं अपने चारों तरफ, वो बहुत अच्छी भी हो सकती है और जब वो काफ़ी बिगड़ती है तो कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रॉब्लमैटिक तो होती है फिज़िकली, बट वो बहुत कॉस्टली भी बन जाती है। तो अपनी तरफ से हम कोशिश करें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की। सभी जानते हैं या समझ सकते हैं कि उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें करनी है। वी आर नॉट द राइट people to give any gyan on that. But the main point is that we should try to live a healthy lifestyle. And one thing that we can always share and suggest is कि यदि किसी का कोई शौक नहीं है,
and if you are young, so develop a hobby in this time. So we meet lot of investors जो कहते हैं कि when I was in school college I wanted to play a musical instrument, मैं पेंटिंग करना चाहता था, मैं स्केचिंग करना चाहता था, मैं गिटार बजाना चाहता था, मैं पियानो सीखना चाहता था, सो मैं गाना गाना सीखना चाहता था। सो वी विल सजेस्ट एवरीबॉडी कि यदि आपका कोई शौक नहीं है कुछ पढ़ने का या गाने का, बजाने का, किसी आर्ट फॉर्म का, तो आप या स्पोर्ट्स का, तो आप एक हॉबी डेवलप कीजिए। क्योंकि जो ये लाइफ की लॉन्गेविटी बढ़ रही है और जो हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से जो हम एक्टिव रहते हैं, इसमें बहुत लोगों का बोर्डम ऑलरेडी हम देखते हैं कि रिटायर्ड लोगों का रहता है कि क्या करें, रिटायरमेंट के बाद क्या करें? तो एक तो बोर्डम होता है, दूसरा फैमिली या बच्चे साथ में नहीं होते हैं, तो थोड़ा आइसोलेशन लगता है एंड दैट बोर्डम एंड आइसोलेशन लीड्स टू डिप्रेशन आल्सो एट टाइम्स। सो हमारे पोस्ट रिटायरमेंट टाइम लेज़र पे निकले, 10, 15, 20 साल हमारे बहुत अच्छे से निकले, उसके लिए हम कोई हॉबी अपनी डेवलप करें, बिकॉज़ देन वी विल बी एबल टू स्पेंड सम टाइम इन आवर हॉबी आल्सो। तो कोई कुकिंग की हॉबी ले सकता है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की ले सकता है, बट कुछ ना कुछ हॉबी हम यदि डेवलप करते हैं, तो उससे हम अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। So this is all from our side, and thank you all for patient hearing. And now I will request you can unmute yourself, and whatever questions you have asked, you can ask us. Can I ask a question, Pawan? Yeah, hello, sir. Rahul, sir. हाँ जी. Hi. Sorry, I joined a little late, but Yeah, I thought it's please. very, very important subject which you picked up, Sure, sir. and you have these advices were there from you long time back in my life, so I could really consolidate everything. You know that well. जी, All investments in with you basically जी. on this. So I've done certain things, and I have also started that hobby piece which you said. Great, I have actually left my corporate job and become a career coach. I always great. wanted to train people. I loved education. So Right. already started doing it in my early Wonderful. 50. So I have the 10 years in hand, which you target in the 60s. So Wonderful, I sir. can make it Wonderful. up. So that's what. So my one question is, Gagan, Pawan, is, uh, the target of 6 crore is a very big target. And being a corporate employee, I know that accumulating that kind of a fund is a very distant dream, unless otherwise you really earn something extra every month. So what about the multiplication of funds? Say, for example, if you have compounding, I would say that if you could really accumulate 2 crores, so can we look at that 2 crores getting multiplied in 10 years into say 6 crore? Is it possible that way in the current market scenario, or what do you suggest? Okay. So first of all, good sir, because we know each other well for so long, and I know you have always been into training, right? Yes. So I am very happy that you have found something which is really near to your heart. Okay. क्योंकि अल्टीमेटली तो यही है जो हम वो चीज कर पाए जो हमारे दिल के नजदीक हो, दैट सही इज बात है. ऑलवेज हेल्पफुल। थोड़ी इनकम कम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर डूइंग द वर्क दैट वी लव एक्चुअली। Yes. तो अच्छा काम करेंगे तो फिर ना तो हेल्थ इशू होगा, तो वो खर्चा बच जाएगा हमारा, राइट? Mm. तो सो योर क्वेश्चन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि जो भी आपको मैं इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जो भी अ, ये जो फिगर्स हैं, फाइनेंशियल फिगर्स, यदि किसी भी इन्वेस्टर को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगते हैं ना, तो लेट मी टेल यू, वंस यू डिसाइड दैट ये सी, ह्यूमन माइंड इज वेरी पावरफुल। ओके, Mm. एक बार जिस चीज को डिसाइड कर लेता है, यदि कर लिया जेन्युइनली, तो सर वो ह्यूमन माइंड अचीव कर लेता है। उसमें मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का, फंड का, एडवाइजर का रोल कम है, वो इन्वेस्टर के माइंड का बहुत ज्यादा है। लेट मी टेल यू दिस, क्योंकि Right. आपने एज एन इन्वेस्टर ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना है 10 साल बाद, तो सर उसके लिए जो भी अचीवमेंट है आप कर लोगे। अब कमिंग टू फाइनेंशियल्स, आप कहेंगे कि ये तो बातें हैं, फाइनेंशियल्स में क्या? तो सर फाइनेंशियल्स में क्या है कि जो वर्ड आपने कंपाउंडिंग यूज किया ना, इट इज वेरी पावरफुल। क्या होता है, हम विजुलाइज नहीं कर पाते। और मैं आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दूंगा कि आपका जो आज इन्वेस्टमेंट फंड है, जो भी है,
राइट? आपने 5 साल पहले तो नहीं सोचा था ये इतना हो जाएगा। No, absolutely not. तो सर आप ना अभी सोच नहीं सकते कि 10 साल में कितना हो जाएगा। मतलब इट विल बी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। द ओनली थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इज कि आप अपना जो भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है, वो आप डिसिप्लिन से करते रहें, और अपना टारगेट जैसे आपने माइंड में बना लिया 6 करोड़ या 8 करोड़ या 10 करोड़, तो बस वो टारगेट माइंड में रखें, टारगेट अचीव हो जाएगा। द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग इज सर कि एवरी 4 to 5 years द मनी डबल्स। ओके, तो आज मेरे पास यदि 1 करोड़ रुपया है, तो वो 4-5 साल में 2 करोड़ हो जाएगा, और वो 10 साल में एक्चुअल में 4-5 करोड़ हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू हैपन। मतलब Right. 1 का 5 तो मैं आपको 10 साल में बोल सकता हूँ कि हो जाएगा। तो यदि आज किसी के पास भी 1 करोड़ रुपया है, और वो यदि 5.2 करोड़ 10 ईयर्स के बाद देख रहा है, तो उसका हो जाएगा। बट सर उसके होने के लिए उसका डिसिप्लिन, यदि वो बैंक एफडी में करेगा तो नहीं होगा। उसके लिए मैथमेटिकली 14-15% का रिटर्न उस इन्वेस्टर को चाहिए। अब वो इन्वेस्टर का जो रिटर्न है 14-15%, उसने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 10 साल तक वो उसको ट्रैक करता है या नहीं करता है, वो राइट इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है या नहीं रहता है, वो बीच में से उसमें से पैसे तो नहीं निकालता रहता है इन्वेस्टर। ये सारी चीजें ना इन्वेस्टर पे डिपेंड करेंगी। तो यदि आप एज एन इन्वेस्टर डिसिप्लिन रहेंगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में रखेंगे, आपका जो फ्यूचर एलोकेशन है वो आप जिस तरह से आप ऑलरेडी कर रहे हैं, यदि आप उस तरह से मेंटेन करेंगे, तो जो भी आपके माइंड में गोल है सर वो अचीव होगा। जो भी इन्वेस्टर इस कॉल में है, वो सर जो भी ये सोच लेगा ना उसका होगा। और मैं ये आपको ना वर्बली नहीं बोल रहा हूँ, ये हमने देखा है पास्ट में, ये हमने अपने क्लाइंट्स के साथ ही एक्सपीरियंस किया है कि जो गोल क्लाइंट्स को इम्पॉसिबल लगता था, वो विद टाइम पॉसिबल हो गया। और मैं एक नहीं, मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। इंडिविजुअल क्लाइंट्स का नहीं दे सकता हूँ कॉल पे, क्योंकि इट इज कॉन्फिडेंशियल। बट लेट मी टेल यू, वी हैव सीन दिस एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस एस्पेक्ट। मैं आप सबका छोड़ देता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। The time I realized around 10 years back that we need to really, build kitty for our children education and all that. तो हमने जितना सोचा नहीं था, जिस तरह की पढ़ाई का बच्चों के लिए बनना चाहिए, we have done that. और जब तक वो सोचा नहीं था, let me tell you, we are into this business since 2003. जॉब कर रहे हैं, पहले जॉब कर रहे थे 96 से। तो 96 से 2010-11 तक हमने उस डायरेक्शन में उस तरह से नहीं सोचा। कभी जोड़ लेते थे, कभी बचा लेते थे, कभी खर्च कर लेते थे। बट जब वो लगा कि ये प्लानिंग से ही करना पॉसिबल है, तो तब से और अब तक का जो मेरे खुद हमारी फैमिली के इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट है, इट इज मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो हम तो खुद ही एग्जांपल हैं कि हम जो सोच नहीं सकते थे वो हमने एज ऑफ टुडे अचीव कर लिया है। एंड व्हाट प्रोबेबली वी कैन नॉट विजुअलाइज टुडे, वी विल अचीव इन 10 years टाइम। एंड दिस विल हैपन विद एवरी इन्वेस्टर ऑफ आवर्स, क्योंकि हम आप लोगों से बात करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब लोग एक साथ ये जर्नी करें और एक साथ उस ट्रैक पे रहें, और जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचे। सर होगा वो। Thanks, Pawan. It's a very प्लेजर। reassuring. Let me tell you, and this is one person I always told my wife, कभी भी मेरे साथ कुछ हो जाता है, एक नंबर आप कभी खोना नहीं. That is Pawan Agarwal's number. So I guess that really will go good for me, at least in my life. I have seen you are very, very much contributed to my well-being, that way, financial well-being. Thank you, Pawan. नहीं नहीं सर, बिल्कुल साथ चलेंगे सर। अभी तो सर पोस्ट रिटायरमेंट तो अपने को घूमने जाना है साथ में। अभी तो हम इकट्ठा कर रहे हैं सब लोग। Sure, sure. बिल्कुल। Thank थैंक यू you. राहुल जी। Pavan Ayaz here, so I can या see हेलो, some. गुड How इवनिंग are you सर। doing, Pavan? या Good आई evening, एम good डूइंग evening. How are you फाइन। doing? या बस आप यहाँ आ गए तो हम खुश हो गए। नहीं पवन बिल्कुल आना था यार. हाँ जी। This is one of my and especially the life stage that I am coming to. I'll राइट। turn 40 next this coming year. So the life stage I'm coming to, I think this is one thing which is top of mind for me, जी and I think it is a need of the hour. And it was good to see an old friend here as well. I was just chatting with him. जी। So it's good to see a lot of people. राइट। Pavan, the only thing I will suggest here is that, see, what happens is that in our day-to-day life, whether it's a corporate job or as a businessman or an entrepreneur,
जी busy is the new word, and it is a word that will stay, जी right? Whether it's the pandemic or not. जी I think what we at times as investors happens to us is that we lose sight of the goal, जी right? एंड वो रोज रोज के काम में चीजों में इतना जूझने लगते हैं कि वो गोल का साइट लूज हो जाता है, एंड जी द ह्यूमन माइंड इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइफर कि आपको कितना पैसा चाहिए होगा. जी See, power of compounding, as Albert Einstein said, is the eighth, ninth wonder of the world, right? But it is a great thing for us to do. I think, apart from the fact that मैं आपकी ऐप पे देखता हूँ और मैं आपके से टच में रहता हूँ, एक ना इन्वेस्टर्स को स्पेशली मैं पर्सनली बोलता हूँ, रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है. जी ये जो बबल में रहने की आदत है ना, जी ये रियलिटी चेक बहुत जरूरी है. और ये वेबिनार्स हो चाहे आपके फोन कॉल ही क्यों ना हो, जी एंड वो एक रियलिटी चेक मिल जाता है ना, सो देन यू काइंड ऑफ आर एबल टू सी दैट मिस्टर एक्स एंड वाई, यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एन एक्स अमाउंट मोर, बिकॉज जी आपके ड्रीम्स तो काफी बड़े हैं बट आप रियलिटी में उतना कर नहीं रहे हैं. जी So I think that is one thing which is a thing that which I would request, possibly if it can happen more with us, जी and that will be really helpful, because वो एक होता है ना कि that जैसे salary class है, अब हर साल everybody knows that we get increments, जी we get our bonuses, but the fact of the matter is कि वो इतनी सारी चीजें और हो रही होती हैं, that retirement planning comes at number 4, number 5, उसको number 1 पे रखना है, एंड जो पैसे बच जाए उससे आप जो मर्जी करिए. जी But बिल्कुल I think बिल्कुल that's सही the right way to look at it, that you get your the goal which is the most important for you 10, 15, 20 years down the line get covered first, and everything else can keep happening later. So बस एक आपसे जरूर हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपका रियलिटी चेक बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत जरूरी है. मैं आपसे पर्सनली खुद ही बोलता रहता हूँ कि डांटना भी पड़े तो डांट दीजिए, क्योंकि भलाई हमारी है उसमें. नहीं बिल्कुल आई थिंक एज ही आप तो ऑलरेडी खुद काफी एक्टिव हैं और बहुत मतलब इंटरेस्ट लेते हैं एंड हम्म. मतलब यू आल्सो नो दैट दिस इज ट्रू, नॉट दैट कि आई एम Absolutely. सेइंग इन फ्रंट No, ऑफ no, अदर बिल्कुल पीपल. बिल्कुल तो बिल्कुल. मेन ये है कि सो राइट नाउ तो अभी ये जो मंथली मीटिंग्स हम करते हैं हमें लगता है महीने में एक बार जो अलग बिल्कुल अलग चीज़ों पे डिस्कशन है आई थिंक, क्योंकि हमें लगता है मतलब आई डोंट नो वेदर राइट और रॉन्ग कि उससे थोड़ा ज़्यादा फिर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि नहीं नहीं, एक ठीक है. महीना तो बीत जाता है. बट बिल्कुल अदरवाइज यू नो अनदर थिंग इफ यू हैव आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट और नॉट, जो मंथली स्टेटमेंट हम फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में भेजते हैं सभी हम्म. इन्वेस्टर्स को मेल से, तो उसमें करंट फंड्स के नीचे फाइनेंशियल गोल्स का स्टेटस दिया हुआ होता बिल्कुल है जिनका भी बना बिल्कुल हुआ है. बिल्कुल. और आइडिया ये है कि उसमें हमें हर महीने एक आइडिया लगता रहे कि वेयर डू वी स्टैंड. हालांकि या. एक महीने में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है बट एटलीस्ट दैट इज द होल आइडिया. हम्म. And still, you know, this meeting is there. We have a statement also, and still, if you feel that we should connect like one to one more, I will keep that in mind. I'll keep it. We will definitely, Pavanji, and आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मतलब you are one call away for every small query that I have, जी and I'm glad that your advice is something which has been always sound. मतलब it is an unbiased advice. You're जी not somebody who will give me an advice towards mutual funds and tomorrow tell me कि Mr. Khan term plan मत लीजिए, कोई फायदा नहीं. हाँ You will जी always give me a very unbiased approach to financial planning, which is deeply appreciated. I think वो एक realistic goals होने बड़े जरूरी हैं. जी And I think this is one topic that you picked up, which is very close to my heart as well. And me and you have spoken about या this a lot. That in the times to come, the dependency on children, the dependency on real estate, the dependency on all of this, I think ये सब zero हो जाने वाली है. So राइट until unless you have liquidity available to you, which you can, करेक्ट. have your daily expenses and everything covered in a non-pensionable job, which you rightly said, वो सबसे important part होगा मेरे ख्याल. मेरे ख्याल से आपने बहुत क्रूशियल पॉइंट बोल दिया कि लिक्विडिटी यदि हमारे पास होगी अपने इन्वेस्टमेंट्स की तभी हम एक्चुअल में उस चीज को ठीक से कर पाएंगे. लिक्विडिटी 100%. नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे. आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग मैसेज यू हैव यू नो गिवन. मैं इनफैक्ट कभी सोचता हूँ कि किसी लाइक वी डिस्कस इन आवर टीम पे किसी ना रिटायरमेंट एक्सपर्ट वगैरह को लाते हैं इस वेबिनार के लिए. मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम ना मैं आप ही को बुला लूंगा. नहीं मैं आ जाऊंगा क्योंकि बिल्कुल, and I'll have a conversation. Because I'm from the BFSI industry and I've ये seen राइट अभी we've done the India Retirement Index study राइट राइट at a national level we have done, करेक्ट and it clearly tells us that
the retirement dream of Indians is distant, Right. but very much visible in their head. Correct. And an average Indian's savings will run out in 8.5 years from its retirement currently. Exactly. 8.5 Right. साल में आपकी रिटायरमेंट के होते होते अगर आप 60 में कर रहे हो, 68 तक आपकी सेविंग खत्म हो जाएंगी, जी. जिस रेट पे इंडियंस कर रहे हैं. एंड इंडियंस currently the way they are saving are going to be unfortunate but true, are going to be one of the poorest when it comes to retirement, because they don't Right. think about retirement, क्योंकि वो दिमाग में वही चलता है कि बच्चे ध्यान रख लेंगे जी. और कहीं और से इनकम हो जाएगा, और भगवान तो है ही देखने के लिए. आप भाई, अब भगवान तो देखने के लिए, भगवान बोल रहा है दिमाग भी इस्तेमाल कर लो अपना थोड़ा सा. So Right. that's what's important, I think. No, I But think, I'll definitely come. yeah, I'll these are definitely words of wisdom, and I think whoever is like our investors is listening would definitely help them. So thank you, as like, Thank you, Bhavan. Thank you yeah, very we'll much. talk. Yeah. सो और भी जो भी कुछ क्वेश्चन या कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं, अपना व्यू भी देना चाहते हैं, वी हैव सम सीनियर पीपल आल्सो इन दिस कॉल, सो इफ दे वांट टू शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस, यू आर मोस्ट वेलकम. क्योंकि जिन लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उससे भी हमें एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मिलती है. सो इफ समबडी वांट्स टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम. पवन, हाँ, तो काफी लोग, हाँ जी, काफी लोगों का ये होता है कि वो उनको लगता है कि हमने एनपीएस अकाउंट खोल लिया है और हम उसमें कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट विल टेक केयर ऑफ माय पेंशन, मतलब रिटायरमेंट. तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? So this question comes often. So first of all, NPS National Pension Scheme, थोड़ा नाम जो है मतलब मैं बोलूँगा कि मिसलीडिंग है, क्योंकि एनपीएस में हम कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा, और आइडिया उसका ये है कि हम पोस्ट रिटायरमेंट के लिए हम एक फंड बना रहे हैं. तो एनपीएस में हम अपना जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पोस्ट रिटायरमेंट के लिए फंड बनता है, क्योंकि हम उसको 60 की एज से पहले नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में निकाल नहीं सकते. पैसे को 60 की एज के बाद ही हम निकाल सकते हैं. तो वो जो पैसा इकट्ठा करने का जरिया है वो एनपीएस है. एनपीएस से किसी इंडिविजुअल को पेंशन नहीं आनी है. एनपीएस में जो भी पैसा इकट्ठा होता है, एज ऑफ टुडे जो एनपीएस के रूल्स है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ. एनपीएस में जो भी पैसा इकट्ठा होगा, सपोज हमारा 25 लाख रुपया एनपीएस में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो एनपीएस ये ऑप्शन देता है कि उसमें से कुछ अमाउंट में टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकता हूँ, 60%, अप टू 60%, और 40% या जितना भी अमाउंट का मैं चाहता हूँ, मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन प्लान लूंगा उस पैसे. एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद हमें कोई पेंशन नहीं देगा. हमारा जो भी कॉर्पस होगा, सपोज 25 लाख है, मैंने 25 लाख का पेंशन प्लान एलआईसी से लिया या एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लिया, तो जो भी मुझे पेंशन प्लान का रेट मिलता है, जैसे आज की डेट में अराउंड 6.5, 6.25% है, वो पेंशन प्लान मुझे उस समय के रेट के हिसाब से पेंशन देगा. तो मेरा 25 लाख है और आज से 10 साल बाद पेंशन का रेट 6% है, तो 25 लाख का 6% मतलब 1.5 लाख रुपए साल के मुझे वो इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान मुझे दे देगा. एनपीएस से एक तो मुझे पेंशन नहीं आनी है, और ऐसा नहीं है कि मैंने एनपीएस में कुछ भी अमाउंट डाल दिया, 50,000 साल का डाला या लाख रुपए साल का डाला, तो मेरी कंप्लीटली वो पेंशन, मेरे को 1 लाख जरूरत हो महीने की या 2 लाख जरूरत हो, वो एनपीएस टेक केयर कर लेगा. ऐसा नहीं होने वाला है. एनपीएस सिर्फ जैसे हम म्यूचुअल फंड में या बैंक में पैसा इकट्ठा करते हैं, वैसे ही एनपीएस में पैसा इकट्ठा होता है, और बाद में हम उस पैसे को यूज करेंगे अपनी इनकम के लिए. एनपीएस हमें पेंशन नहीं देगा, और हमारी जितनी भी इनकम की रिक्वायरमेंट है उसका एनपीएस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. मेरा जितना फंड वहाँ एक्यूमुलेट होता है उसके बेसिस पे मैं फ्यूचर इनकम किसी इंश्योरेंस कंपनी से लूंगा. ओके, इसी के एक्सटेंशन में काफी लोगों का ये होता है माइंड में कि रिटायरमेंट के लिए हमें कोई जैसे एलआईसी के पेंशन प्लान ले लेने चाहिए, जिससे कि कुछ पेंशन उनकी आनी शुरू हो जाएगी. तो ये क्या सही होता है? मतलब तो इसके लिए मैं बोलूँगा, जो पूरा प्रेजेंटेशन हुआ है उसका जो कोर है, नॉर्मली हम एज एन इन्वेस्टर्स प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं
कि मैं बॉन्ड ले लेता हूँ, मैं पेंशन प्लान ले लेता हूँ, मैं इक्विटी फंड ले लेता हूँ, मैं एफडी ले लेता हूँ, मैं रिकरिंग डिपॉजिट कर लेता हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस एमआईएस ले लेता हूँ। नॉर्मली जो टारगेट होता है हमारा वो प्रोडक्ट्स होते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ वी हैव बीन इन्वेस्टिंग फॉर लास्ट मेनी ईयर्स। बट द आइडिया ऑफ प्लानिंग इज कि हमने ये प्लानिंग की कि मुझे 1 लाख रुपया यदि चाहिए, 85 की एज तक चाहिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड चाहिए, तो मुझे 5 करोड़ की किटी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरा इन्वेस्टमेंट 9% पे होगा आफ्टर रिटायरमेंट। मुझे 7 करोड़ की किटी चाहिए होगी यदि मेरा इन्वेस्टमेंट 6% पे होगा, और मुझे शायद 9 या 10 करोड़ की किटी चाहिए होगी यदि मेरा इन्वेस्टमेंट 3-4% पे होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन मेरा इन्वेस्टमेंट किस रेट पे होगा, उसके बेसिस पे मेरी किटी डिसाइड होगी। तो कोई इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान लेके ये सोचना कि मेरी पेंशन की नीड पूरी कर देगा, बिल्कुल कर देगा यदि वो पेंशन प्लान 6% का रिटर्न दे रहा है, और मैं यदि पेंशन प्लान यदि 7-7.5 करोड़ रुपए का ले रहा हूँ, तो वो एलआईसी का पेंशन प्लान मेरी 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से नीड पूरी कर देगा। बट द पॉइंट इज कि क्या मैं 7.5 करोड़ का एलआईसी का पेंशन प्लान ले रहा हूँ, या मैं एक्चुअल में 7.5 लाख रुपए का पेंशन प्लान ले रहा हूँ। तो यदि एलआईसी में 20 लाख रुपए का या 7 लाख रुपए का पेंशन प्लान लिया है, तो इसका मतलब मेरी जो इनकम होगी वो आज के हिसाब से 10-15 हजार रुपए के हिसाब से होगी। तो क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट होगी? ऑब्वियसली नहीं। तो सिर्फ एक प्लान लेना सफिशिएंट नहीं है, उस प्लान से रिटर्न कितना आएगा, उस प्लान में मैं अमाउंट कितना डाल रहा हूँ, मेरा खर्चा कितना अंदाजन होगा, वो किस स्पीड से फ्यूचर में बढ़ेगा। यदि मुझे एक्स्ट्रा खर्चा, इमरजेंसी खर्चा कुछ करना पड़ा अपने मेडिकल पे या अपने घर के ऊपर, तो क्या वो मेरे को अपने एलआईसी के प्लान से आ जाएगा? डेफिनिटली वो इमरजेंसी मनी नहीं आएगा, एलआईसी तो फिक्स अमाउंट देगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक्चुअल में प्लानिंग से करना चाहिए। प्रोडक्ट को टारगेट करके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग रिटायरमेंट के लिए नहीं की जा सकती। उसके अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ओके। और एक लास्ट ये है कि कोई भी पेंशन प्लान में यदि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, तो जो पेंशन मुझे 60 की एज में आती है, वही 80 की एज में आती है। तो ऐसा कैसे है कि 60 की एज में मेरा 10,000 रुपया एलआईसी का पेंशन प्लान दे रहा है और 80 की एज में भी 10,000 रुपए दे रहा है। तो 80 की एज में उस 10,000 रुपए से क्या होगा क्या मेरे लिए? कुछ नहीं। बिल्कुल। ओके। देन हाउ शुड एन इंडिविजुअल प्लान फॉर हिज रिटायरमेंट? तो जो हमने 7 रिटायरमेंट स्टेप्स मेंशन किए थे इसमें, कि वही 7 स्टेप्स हमारे हिसाब से ब्रॉडली फॉलो करने चाहिए। कि पहले हम अपने डेट्स को पे ऑफ करें, फैमिली के प्रोविजंस बनाएं, इन्वेस्टमेंट्स को कंसोलिडेट करें, आपस में हस्बैंड वाइफ बात करें कि किस तरह की पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी वो देखते हैं, उसके बेसिस पे कितना किटी चाहिए होगा, और उसके हिसाब से वो आज इन्वेस्ट करें। तो करने के लिए काफ़ी कुछ है, अदरवाइज वैसे देखा जाए तो सिंपल है, लेकिन सिंपल वो तभी है जब वो किया जाए। यदि वो उस तरह से नहीं किया जाएगा तो फिर वो सिंपल भी नहीं है। तो उसका कोई वन लाइनर जवाब नहीं है, उसकी एक पूरी प्रोसेस है, और वो प्रोसेस पूरी प्लानिंग से ही की जा सकती है। ओके। अच्छा, दूसरा काफ़ी इन्वेस्टर्स के माइंड में ये रहता है कि म्यूचुअल फंड्स एक्यूमुलेशन के लिए तो ठीक है, बट इससे मेरी रेगुलर इनकम कैसे आएगी? वो विजुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं वो। तो यदि यहाँ मेरे को एक्सप्लेन करना है तो ये है कि म्यूचुअल फंड से विड्रॉल ऑप्शन होता है। म्यूचुअल फंड से हम मंथली विड्रॉल, हम क्वार्टरली विड्रॉल बना सकते हैं। तो सपोज म्यूचुअल फंड्स की जो ग्रोथ रेट है वो हम 10% ले रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकली अचीवेबल होती है। तो 10% यदि हमारा फंड ग्रो करता है और हम सपोज 8% का पे आउट लेते हैं, मतलब मेरा 1 करोड़ रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, वो हर साल 10 लाख रुपए ऑन एन एवरेज बढ़ता है। हर साल शायद 10 नहीं बढ़ेगा, बट किसी साल 8 बढ़ेगा, किसी साल 12 बढ़ेगा। तो ऑन एन एवरेज यदि वो 10 लाख रुपए बढ़ता है और मैं यदि 7% का उस पर पे आउट फिक्स करता हूँ कि 7 लाख रुपए मुझे साल के आ जाएं, तो धीरे धीरे वो 1 करोड़, 1 करोड़ 3 लाख भी हो जाता है। उसका जो कैपिटल है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख वैल्यू हुई, और मैंने 7 लाख निकाला तो 1 करोड़ 3 लाख रह गया। तो इस तरह से ये कैपिटल धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और इस कैपिटल को बढ़ने का एडवांटेज ये है कि 1-2 साल बाद जब मुझे 7 लाख की जगह 8 लाख रुपए चाहिए अपने खर्चा, क्योंकि मेरा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, तो क्योंकि मेरा कैपिटल भी बड़ा हो गया है, तो मैं उस विड्रॉल को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ।
तो म्यूचुअल फंड एक वन ऑफ द सूटेबल टूल्स है जहां पर कैपिटल का भी हम एप्रिसिएशन देखते हैं और साथ में हम रेगुलर इनकम भी उसमें से बिल्डअप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ये रहती है कि आज हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और 6 महीने बाद भी इन्वेस्ट इनकम शुरू कर सकते हैं, 1 साल बाद भी शुरू कर सकते हैं, अभी इन्वेस्ट करके अभी शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट हमें अभी अभी जो विड्रॉल इनकम चाहिए, सपोज आज 1 करोड़ में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे पूरे 7 लाख रुपए नहीं चाहिए साल के, तो आज मैं 20,000 पर मंथ का भी विड्रॉल बना सकता हूँ यदि उससे मेरी नीड सेटिस्फाई होती है। बाद में मैं उस 20 को 40 भी कर सकता हूँ। तो ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी फंड्स में होती है। और यदि किसी इन्वेस्टर की कोई इंडिविजुअली कोई रिक्वायरमेंट है तुलिका, तो हम उसको अलग से एड्रेस कर सकते हैं, या वी विल ट्राई दैट वी विल राइट अ ब्लॉग आल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ओके, फाइन, थैंक यू। Thank you. Anybody else wants to ask any question? Hi, Pawan. This is Yes, sir. Manish. Yeah, hi Manish. how are you? Manish, good. Deepak ji, Manish के बाद क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, प्लीज। Sure. Yeah, hi Pawan, Manish. I had a very simple question. Yeah, That if you are investing in SIP, right, in mutual fund, you are talking about lump sum payout of 1 CR. But right, if you are investing in SIP, and if I am looking at a retirement 10 years from now, right, and I have to get a corpus of something like 6 CR. right. So what should be my SIP per month to invest from investment angle to achieve that corpus of 6 CR? Some thumb rule is there about what should there's some kind of calculation looking at some 9% rate of growth and 5 or 6% rate of inflation. Right, Manish. So, see, 9% rate of growth we are taking on investments which we are doing at the time of retirement. Okay. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो अब हम रिटायर होते हैं, जो हमारा 6 करोड़ है, वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम इन्वेस्ट करेंगे, वो 9% हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा पैसा सेफ्टी में रखना चाहेंगे, थोड़ा पैसा ग्रोथ में रखना चाहेंगे, राइट? Okay. लेकिन अभी जब हम एक्यूमुलेशन फेज में, इसको रिटायरमेंट प्लानिंग में एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं, जिस पीरियड में हम पैसे को इकट्ठा करते हैं रिटायरमेंट के लिए। Okay. तो जो आप 10 इयर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन फेज। एंड बिकॉज 10 ईयर इज अ रीजनेबल पीरियड फॉर ग्रोथ पर्पस, मतलब 5 ईयर एंड अबव का कोई भी पीरियड ग्रोथ के लिए ठीक रहता है। तो आई वुड एज्यूम कि यदि हम 6 करोड़ का टारगेट करते हैं 10 साल के अंदर, और जो हिस्टोरिकल 10 ईयर एवरेज है, मैं बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं ले रहा हूँ, बट हिस्टोरिकल 10 ईयर एवरेज इज 15%। तो 15% पे यदि मैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि my money normally in 10 years actually becomes slightly more than double. तो मतलब जो मेरे को 6 करोड़ करना है, इसका मतलब मेरे को करीबन 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करना है इस पीरियड में, इन 10 years टाइम। अच्छा। तो आप ये लगाइए, ये मैं एक थंब रूल बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट मैथमेटिकली मत लेना उसको। नहीं, थंब रूल बेस पे कह रहा हूँ। तो मोर और लेस ये है कि आप 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 6 करोड़ हो जाएगा 10 साल में। तो आप ये लगाइए कि 2.5 करोड़ का मतलब है कि यू आर डूइंग से अराउंड 22 लाख रुपए पर मंथ यदि आप करते हो एसआईपी में, मतलब 24-25 लाख रुपया साल का करोगे, तो आपका, आपने 10 साल में 2.5 करोड़ दिया होगा, वो 10 साल में 6 करोड़ प्लस आपका हो जाएगा। ये हम एवरेज जो 10 ईयर हिस्टोरिकल इक्विटी रिटर्न है, हम उसको ले रहे हैं। So basically, thumb rule system is that if you're taking a 10-year period, so you look at the total corpus at the end of 10 years, you half it and you divide it by the 10-year phase. Yeah, more or less you can say so. Half या थोड़ा उससे कम कर लीजिए। हाँ, उससे करके ठीक है। बस मुझे ये थंब रूल एक मेंटली वो करना था। तो 2 lakhs per month should be the investment in mutual funds at a assume a growth rate of around 15%. Yeah, for 10 years period. For 10 years period. Yeah. Okay. Thank you. Welcome. Deepak ji, please unmute and ask your question. सर अभी ना इनकम टैक्स सेविंग के लिए मैं एनपीएस अकाउंट का ही सोच रहा था। एक्चुअली अकाउंट ओपन है बट इस साल का मैंने डाला नहीं जी। तो सर क्या वो टैक्स सेविंग के पर्पस के अलावा वो इन्वेस्टमेंट के पर्पस की वजह से भी ठीक रहेगा? एनपीएस की बात कर रहे हैं ना? जी सर, प्राइमरी वो तो फिलहाल वो टैक्स सेविंग के लिए ही 30,000 एक्चुअली वो 20% या 30% में आई गेस आ गया होगा। राइट।
तो दीपक जी तो जो आप जैसे देखिए 50,000 तो उसमें इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि एडिशनल टैक्स सेविंग हो जाती है उसके अंदर। ओके, दूसरा ये है कि जो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसमें यदि आप ग्रोथ ऑप्शन ले रहे हैं एनपीएस में, तो ग्रोथ ऑप्शन आपको 12% के करीब का रिटर्न दे देता है, विच इज डिसेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, कि आपको टैक्स सेविंग भी मिल गई और आपको 12% प्लस का ग्रोथ भी मिल गया। तो 50,000 तो आप पर मंथ उसमें पर ईयर आप कर ही सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उसके बियॉन्ड यदि आपको कुछ करना है उसके अंदर, तो अगेन मैं ये बोलूंगा कि एंड डोंट माइंड कि जो ओवरऑल प्लान है ना अपना पहले फैमिली का, मतलब ये ना आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। 50,000 तो आप कर दीजिए, उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बियॉन्ड हमें करना है तो हमें अपने और भी गोल्स वो किस टाइम पे पूरे होंगे, किस चीज के लिए मैं कहाँ कितना कर रहा हूँ, वो सारी चीजें देखकर ही ना मतलब जवाब देना पॉसिबल है दीपक जी, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि आपके यदि और बहुत सारे गोल्स हैं जिसमें अभी शॉर्टफॉल है, तो मैं अभी एनपीएस में लॉक करने के लिए नहीं बोलूंगा पैसा, लेकिन यदि आपके जो भी अदर गोल्स हैं यदि वो टेकन केयर ऑफ हैं, तो फिर आप अपने पैसे को एनपीएस में थोड़ा लॉक भी करेंगे तो आई विल नॉट माइंड। तो मतलब डिपेंड करता है कि बाकी आपके फैमिली गोल्स और उनका जो प्रोविजनिंग है वो क्या है अभी आपकी। तो वो 1 to 1 मेरे ख्याल से वो किया जा सकता है, उसका ना ब्लैंकेट रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। 50,000 का तो मैं आपको ब्लैंकेट रिप्लाई दे सकता हूँ कि आप वो कर सकते हैं, बट 50,000 के बियॉन्ड का ब्लैंकेट रिप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आई गेस एक बार प्रियंका जी से डिस्कस कर लूंगा। हाँ, वो आप एज यू कैन अंडरस्टैंड वो आप बिल्कुल आपकी फैमिली की जो करंट सिचुएशन, आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो फाइनेंशियल प्लान्स हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड हो जी। पाएगा। बट 50,000 तो बिल्कुल। आप कर सकते हैं दीपक जी, वो उसमें तो एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। हाँ सर, मेरा मेन कंसर्न इसमें ये था कि अभी जो 50,000 पे मैं टैक्स बचा लूंगा, मतलब 10 या 15,000 जो भी बचेगा, बट क्या लॉन्ग टर्म में जैसे 60% हमें मिल जाएगा और 40% वो रह जाता ऑल ऑफ सडन, एंड देन हम ये भी सोचते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता नहीं कितनी होती है, 60 रहती है, 65 रहती है, तो क्या वो फंड का क्या कुछ होगा? इस देखिए तरह को यदि लेके था कि अभी शॉर्ट टर्म का तो मैं गेन देख रहा हूँ, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में भी कुछ होगा ऐसा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मेरे को उतने उसका? उतने पे बेनिफिट हो जाएगा। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट टू मच नेगेटिव, आई एम slightly on a positive side for NPS up to a certain amount, and I will give you the reason because NPS जब लॉन्च हुआ था तब से और आज तक ना NPS में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और वो नॉर्मली चेंजेस इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए ही आए हैं। ओके, जैसे जैसे नीड चेंज होती जा रही है या जैसे जैसे गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज होती जा रही है कि ये भी एक प्रैक्टिकल इशू है, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको ना अट्रैक्टिव बनाती जा रही है विद टाइम। आज वो कंप्लीटली अट्रैक्टिव नहीं है, बट मेरे को ये उम्मीद है, और जो लास्ट एनपीएस में जो चेंजेस की बात चल रही है, अगले 10-15 साल में एनपीएस और बेटर ही होगा। मतलब ये बात मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ आपको। ओके, तो यदि आप लिमिटेड अमाउंट उसमें कर रहे हैं, उसमें आपकी टैक्स सेविंग भी हो रही है, रिटर्न भी उसमें ठीक ठाक आ रहा है, तो आप उसके अंदर अभी कर सकते हैं। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट। यदि होता तो फिर मैं आपको बोलता कि उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जैसे गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है उसके अंदर कि एनपीएस तो पेंशन नहीं देता है, राइट, लेकिन वो आपको फ्रीक्वेंट विड्रॉल का ऑप्शन भी नहीं देता है। ओके, तो गवर्नमेंट क्या ऑलरेडी ये बिल बना हुआ है, ये अभी पास होना है, मतलब अभी जो भी गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म होता होगा बिल पास करने का पार्लियामेंट वगैरह में, कि बिल ये पास होना है, लेकिन ये बना हुआ है बिल कि उसमें से वो शायद विड्रॉल ऑप्शन अलाउ करेगा। ओके, तो सर इस बिल में नहीं करेगा तो 5 साल बाद कर देगा, कभी ना कभी विड्रॉल ऑप्शन उसमें आ जाएगा। यदि एनपीएस में विड्रॉल ऑप्शन आ जाता है तो फिर आपको एलआईसी से पेंशन प्लान लेने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट। ओके, तो मेरा मतलब ये है कि आई एम जस्ट सेइंग कि concretely whatever it is today, it is good enough to put 50,000 a year, and if it gets better with time, then you can even plan putting more money as it gets better with time. लेकिन इस 50,000 को आप डाल सकते हैं, there is no harm in it. गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग लता। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे काफी क्लाइंट्स का ये भी रहता है कि हमें व्हाट इज द राइट एज टू प्लान रिटायरमेंट प्लानिंग?
ओके, तो मतलब कहाँ से शुरू करें, किस एज से प्लानिंग करना शुरू करें? राइट सर। तो सी, हालांकि बड़ा क्लेश है कि कोई भी प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू की जाए उतनी बेटर है, बट इफ आई रियली स्पेसिफिकली आंसर दिस क्वेश्चन, तो वो जो 7 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए थे ना अभी, कि पेइंग ऑफ द डेट, मेकिंग प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल गोल्स ऑफ फैमिली, मतलब जो भी अदर गोल्स हैं, तो जो भी फैमिली के अपने गोल्स हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, सपोज उनके बच्चे हैं, तो जब भी उनके जो गोल्स हैं वो जैसे पहले उनकी प्रोविजनिंग करें बेसिकली, और साथ में थोड़ी रिटायरमेंट की शुरू कर सकते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि यदि 30 के अराउंड यदि मैरिज हो रही है, 32-35 तक यदि लोगों के किड्स हो जाते हैं, तो आई विल से दैट one can start thinking from 30 एज ऑनवर्ड्स, और 35 ऑनवर्ड्स वो थोड़ा सीरियसली प्लान कर सकता है, और 40 के बाद तो वो थोड़ा काफी फोकस के साथ प्लान होना चाहिए। मतलब 25-27 पे प्लान नहीं करेगा चल जाएगा, क्योंकि उस समय तो वो अपने लिए, नियर टर्म के लिए या अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए ही प्लान करता है। बट 30-35 तक वो स्टार्ट कर सकता है थॉट प्रोसेस की, लेट मी स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन दैट। लेकिन 40 के बाद तो सीरियसली प्लान करना चाहिए किसी इन्वेस्टर को, क्योंकि 40 के बाद क्या है, 20 ईयर्स ही रह जाते हैं एक्चुअल में। अब क्या है, आपको 20 ईयर्स में प्लानिंग करनी है, और ऑलमोस्ट 20-25-30 ईयर्स के लिए प्लान करना है। मतलब आप 60 के बाद 20-25-30 साल तो जिंदा रहने वाले हैं, और आपके पास 20 साल हैं अपने करंट खर्चे को भी पूरा करने के लिए, करंट फाइनेंशियल गोल्स को भी पूरा करने के लिए, और रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए भी। तो यदि हम 40 पे शुरू नहीं करेंगे करने को, तो यदि आज 55 के हैं तो भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हम यंगर साइड पे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को, यस सर। और 35 से तो शुरू कर ही देना चाहिए सोचना, और 40 के बाद तो बहुत सीरियसली करना चाहिए इसको। तो एज अगर हम देखा जाए तो 30 से 45 के, मतलब 40 के बीच में हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए कि हाँ, रिटायरमेंट मतलब प्लानिंग थॉट प्रोसेस सीरियसली। थोड़ा बहुत, जैसे यदि हमें लगता है कि हम 50,000 सपोज पर मंथ की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो कम से कम 4-5,000 तो कम से कम हमें शुरू कर देना चाहिए। मतलब कुछ, सपोज आज मैं 50,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ टोटल फैमिली के लिए, तो कम से कम 5,000 रुपए तो मेरे को रिटायरमेंट के लिए 30-35 के बाद एलोकेट करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि उस समय जो छोटा अमाउंट भी होता है वो 25-30 ईयर्स में बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा इन्वेस्टर का। यस सर। तो वो 5,000 उसका एज गुड एज वो 15-20,000 जो 45 की एज पे करेगा ना, उसके बराबर हो जाएगा। वो जो 5,000 35 की एज से शुरू करेगा, वो उसके 45 का 10-15 हजार रुपए से बेटर होगा फ्यूचर में वैल्यू वाइज। तो अर्ली स्टार्ट कर दे थोड़े छोटे अमाउंट से, और 40 के बाद तो सिग्निफिकेंटली वो उस गोल के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो टाइम मिलेगा उस पैसे को बढ़ने के लिए। मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो टाइम का है। जितना ज्यादा टाइम होगा, पैसे की ग्रोथ उतनी होगी। थैंक यू सर। बट रिटायरमेंट की प्लानिंग आप बाकी और गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज करके शुरू से नहीं कर सकते। यदि अभी किसी के 1 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो वो उसके लिए भी तो प्लान करेगा ना, वो सिर्फ अपने रिटायरमेंट के लिए भी प्लान नहीं करेगा ना अल्टीमेटली। तो वो 7 स्टेप्स जो आपने बताए थे उसको हाँ, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। मतलब करेंगे तो वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू लता। Hi Pawan, this is Zafar. Yeah, hello Zafar, how are you doing? Long Yeah, time. excellent. Yeah, it's been a long time. Yeah. Thank you Well, for good. the session. It was really very interesting and very informative. So, Thank you. my question is that Pawan, that what are the other alternatives available for the retirement planning other than mutual fund and NPS? If you have time, I see that Yeah. it's so if you can. No, sure. Yeah. So, Zafar, see, it is again, I'll come to the point that see, product should come almost last or second last. Okay. The first thing is that what is the amount I am trying to put and what is the rate of return I am trying to get. Okay. मतलब मुझे सपोज 50,000 इन्वेस्ट करना है और 14% का रिटर्न चाहिए। मैथमेटिकली आई एम टॉकिंग,
तभी मैं सपोज अपने टारगेट को पूरा कर सकता हूँ। सपोज कि मैं एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, एक्स उस पर रेट ऑफ रिटर्न आएगा, तब मैं अपने टारगेट को पूरा करूंगा। अब यदि मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10-12% से ऊपर है, तो बिना इक्विटी इन्वेस्टमेंट के जफर वो पूरा हो ही नहीं सकता। It is not about product, it is about from where can I get that rate of return. I hope you are getting the point. See, I can invest at 10 different places. I can invest in post office also. I can invest in RBI bond also. I can invest in many other places. The point is, do those places give me 12% return or 10% return, whatever return I'm targeting? यदि मेरा 4-5% रिटर्न का टारगेट है, then तो there is no problem. लेकिन उससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होता ना, क्योंकि उसके लिए मुझे कॉर्पस बहुत बड़ा चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बहुत बड़ा चाहिए, तो उतना तो मैं इन्वेस्ट कर नहीं सकता। तो मेरे लिए जरूरी क्या है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 12% 14% का रिटर्न बनाए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट्स आर देयर व्हिच मेक 12% रिटर्न प्लस। तो अपार्ट फ्रॉम इक्विटी आई डोंट नो एनी अदर इन्वेस्टमेंट। किसी ना किसी फॉर्म में वो इक्विटी से रिलेटेड तो होगा ही होगा। मैं या तो डायरेक्ट स्टॉक्स करूंगा, या मैं म्यूचुअल फंड्स करूंगा, या मैं एनपीएस करूंगा, या मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस लूंगा, या मैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में जाऊंगा एआईएफ में। लेकिन ये सारे मेरे को 12% तभी रिटर्न देंगे जब ये इक्विटी बेस्ड होंगे। अब यदि बॉटम लाइन ये है कि यदि मुझे इक्विटी में ही लगाना है, तो सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका क्या है, सबसे कम कॉस्टली तरीका क्या है मेरे लिए? जब हम इन तीनों में, और लिक्विडिटी कहाँ पे है, कहाँ पर मैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे मॉनिटर कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं चीज को चेंज कर सकता हूँ, यदि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कहाँ मैं उस पर एक्शन ले सकता हूँ। जब मैं इन सारे पैरामीटर्स को वे करता हूँ, तोलता हूँ, तो एंड में म्यूचुअल फंड ही एक प्रोडक्ट निकल के आता है, क्योंकि उसको मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, कभी भी पैसा निकाल सकता हूँ, कभी भी उसमें डाल सकता हूँ। ट्रांसपेरेंटली मैं मार्केट से अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर कर सकता हूँ। मुझे पता होता है आज मेरा रिटर्न क्या आ रहा है। मुझे फंड्स के बारे में सब पता होता है। जब तक मैं पैसा निकालता नहीं हूँ, मेरे ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आता है, और यदि टैक्स आएगा भी मेरे ऊपर, तो लॉन्ग टर्म में मेरे ऊपर 10% का टैक्स आता है। तो टैक्स वाइज इट इज वेरी एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंसी वाइज इट इज एफिशिएंट। आई कैन पुट मनी इन स्मॉल क्वांटम, आई कैन पुट मनी इन लार्ज क्वांटम। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह इस प्रोडक्ट के अंदर है, वो अभी तक मेरी समझ में नहीं आई है कि किसी और प्रोडक्ट में कहाँ है। तो आपका यदि क्वेश्चन ये है कि कहाँ कर सकते हैं, तो इससे बेटर जफर यदि कोई ऑप्शन कभी मेरे को पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। आज की डेट में मुझे इससे बेटर ऑप्शन नहीं पता है। आप ही का नहीं, मेरा एज अ फैमिली 100% A to Z 100 माने 100% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर है, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि इससे बेटर मैं कहाँ जाऊं। आप देखो 14, 15, 16% का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में अभी जब से आपने शुरू किया है तब से आ रहा है, राइट? तो इतना रिटर्न तो जफर बिना, मतलब हम इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकली हम कुछ और तो नहीं कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड। कोई मेंटेनेंस फीस नहीं दे रहे, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे, कहीं कोई जाके कोई रजिस्ट्री नहीं करा रहे, कुछ भी तो नहीं कर रहे उससे रिलेटेड। हमें प्रैक्टिकली घर बैठे 15-16% का रिटर्न आ रहा है। और क्या चाहिए? मतलब इससे बेटर अभी तो मेरी नॉलेज में नहीं है जफर। राइट। थैंक यू पवन एक्चुअली फॉर दिस, थैंक यू। प्लेजर जफर, गुड टू सी यू। नेक्स्ट टाइम भी जरूर आना। अच्छा sure I'll try, and definitely we'll have a call maybe next week. Definitely, always welcome Zafar. Thank you. Hi Pawan ji, good afternoon. This is Shashikant Rajguru. I had already discussed details with Tanisha, and earlier Lata also was my financial advisor. Ji Shashikant. Currently, I think Tanisha Bansal is my financial advisor. Ji. And I am a very old customer from in Investment Guru. Thank you. Account Financial since 2008. नमस्कार 2008 से मैं हूँ सर, कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। मैं दिल्ली में तो था। I was working in Delhi Airtel. Okhla was my office. जी। From that time 2008 to till now, I am your reliable customer. Sir, and I have got good services from you.
जी सो मेरा ये क्वेश्चन था थोड़ा कि मैं तो फाइनेंशियल साइड में मैं बहुत ढीला हूँ एक्चुअली, जी कभी प्लान नहीं किया, बट अभी मेरा एज 49 जी हो गया जी अभी मेरा दिमाग में आ रहा है यार ये सब चलेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा आगे, फिर जी एज तो बढ़ता जा रहा है, तो ये तो ऐसे 10 साल बीत जाएगा, 60 साल उम्र हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। जी अभी मेरा वही तनिषा जी से तो काफी टाइम से बात हो रही है, तो वो भी मेरे को इंसिस्ट कर रहे हैं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट पहले जो भी चल रहा है जी ऑलरेडी, जी तो उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए बात चल रही है, ठीक है। जी जी तो वो तो अच्छी बात है, मैं भी अभी फाइनली प्लान कर रहा हूँ कि मैं भी उसको थोड़ा बढ़ाऊंगा जी और उसको कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा अच्छा गेन और रिटर्न जैसे मिलेगा। बट आप आज आपसे भी दर्शन हो गया, मतलब कभी मैंने मिला नहीं था, कभी ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, जी तो इट्स ए गुड टाइम। सो आप मुझे थोड़ा सजेशन दीजिए कि म्यूचुअल फंड में अगर मैं इन्वेस्ट अभी करता हूँ, जैसे अभी आपने बोला रिटर्न कम से कम 15-16% जो भी है आ जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें मैं थोड़ा करना चाह रहा हूँ जी म्यूचुअल फंड्स में। तो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड क्या है, वो कैसे मतलब पता चलेगा कि किसमें इन्वेस्टमेंट का क्या है? तो शशिकांत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतने साल अपना ट्रस्ट बनाए रखा है हमारे साथ, हाँ जी, एंड it is a matter of pride to us, achievement to us, and we would like to continue and better our services in future also. Okay. या तो और बाकी आपका जो क्वेश्चन है, तो आई थिंक देर आर some very good investment opportunities. Okay. ओके And I will see, don't take my words wrong, mutual funds returns or any market linked returns are dependent upon the market. Okay. तो 14-15% की कोई गारंटी नहीं होती है, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म हिस्ट्री। और जिस तरह से इंडिया की एज अ कंट्री ग्रोथ है, वी एक्सपेक्ट दैट वी शुड क्रिएट गुड वैल्यू बेसिकली, क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोथ कंट्री। ओके। अब वो रिटर्न 14 आएगा, 16 आएगा, 13 आएगा, मुझे नहीं मालूम, बट वट एवर इट विल बी गुड रिटर्न इज वॉट आई विल पुट एज अ डिस्क्लेमर। ओके, देर इज नो गारंटी ऑफ रिटर्न, बट यदि आप पेशेंटली इन्वेस्ट करते हैं, डेडिकेटेड डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हैं, तो एक अच्छी रीजनेबल वैल्यू बन जाती है। और मेन ये है कि इससे बेटर वैल्यू नॉर्मली और कहीं बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ओके। तो मतलब यदि यहाँ 12 भी आएगा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं और 12 नहीं आ रहा होगा। यदि ओके यहाँ 15 आएगा, तो कहीं और 15 नहीं आ रहा होगा। राइट। राइट तो रिटर्न्स को आप एकदम फिक्स मत कीजिएगा माइंड में, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। बट जो भी आपका पोर्टफोलियो करेगा, वो ओवरऑल अच्छा ही करेगा एज कम्पेयर टू द मार्केट। सवाल रहा कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अच्छे हैं। तनीषा इज क्वालिफाइड एंड शी इज वेरी डिसिप्लिन, डेडिकेटेड। Investments, I think we can discuss one on one. Tanisha can do that, I can do that with you if you want, but there are many good investment options. यदि आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है तो ऑलरेडी अच्छी होंगी, और यदि आप जो भी बढ़ाना चाहते हैं, we can always discuss, because there are many investment options. There is not one. Different fund houses, different funds, different type of funds, मल्टी कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, इंटरनेशनल भी है, हाइब्रिड बैलेंस्ड भी है। तो कितने फंड्स में, किस तरह के फंड्स में कितना एलोकेशन करना है, वी कैन डिस्कस ऑलवेज 1-to-1 बियॉन्ड दिस कॉल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना? तो वो हम कर सकते हैं, वो हम जरूर करेंगे फिर आपसे। ओके थैंक यू थैंक यू। Good evening, sir. या गुड इवनिंग तनीषा। Thanks for taking such a relatable topic. Actually, topic सबके लिए ही relatable है. So, my questions are more of behavioral kind of, मतलब वो financial नहीं है, behavioral ज़्यादा है. तो एक I will question try मेरे to mind, answer. I will try to हाँ, answer. तो मेरे mind में एक ये आता है कि if we have to set a goal for retirement, तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम अपनी करंट लाइफस्टाइल देखें, हम अपने करंट एक्सपेंसेस देखें और ये देखें कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उस टाइम पे क्या मुझे रिक्वायर्ड होगा, और हमें गोल बनाएं। और इस टाइप के गोल में मेनली जो एज एन इन्वेस्टर हमें डालना होगा वो हमारा डिसिप्लिन है बेसिकली, कि हम अगर डिसिप्लिन वे में करते रहेंगे तो दैट विल बी अचीव्ड। और दूसरा तरीका ये है कि मैं अपना अभी करंट नहीं, मैं इस चीज पे फोकस करूं कि पोस्ट रिटायरमेंट व्हाट डू आई एस्पायर, और मैं उस अकॉर्डिंग एक गोल बनाऊं। हो सकता है उसके लिए मुझे अपनी करंट लाइफस्टाइल में भी फर्क लाना पड़े।
मतलब it may demand some additional efforts from my side. तो as per your experience आपको क्या लगता है कि गोल सेट करने का कौन सा तरीका ज्यादा अचीवेबल होता है या कौन सा फॉलो करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? Okay, so good question. I think not only from behavior side, but actually from finance side also, if you really go deep into this question. तो इसमें जो हमारा व्यू है तनीषा, वो ना स्टेप वाइज होता है बेसिकली. See, because it is a very difficult goal and it is a very challenging and a very big goal. 5, 10, 7, 10, 12 करोड़ इतना आसान नहीं होता इकट्ठा करना, right? For every individual with different income brackets. किसी का Right. इनकम बहुत ज्यादा है तो उसके लिए थोड़ा इजी होगा, लेकिन एक एवरेज आदमी के लिए इतना बड़ा कॉर्पस इज नॉट दैट इजी ऑल्सो. तो जो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है वो हर चीज में ना सक्सेसफुल नॉर्मली रहती है. कि यदि मेरी आज जो एक्सपेंसेस है, सपोज आज 1 लाख रुपया, यदि थंब रूल यदि मैं बताऊं कि जो हम देखते हैं कि यदि आज मेरा फैमिली एक्सपेंस 1 लाख रुपया है तो उसका 80% हमें कर लेना चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट मुझे कम से कम इतना तो चाहिए होगा. ओके, तो आज यदि किसी फैमिली का 1 लाख रुपया का एक्सपेंस है तो 80,000 का तो कम से कम वो मान के चले. और पहली प्लानिंग, फर्स्ट प्लानिंग, देखो 20-30 साल की प्लानिंग ना सारी आज ही करनी जरूरी नहीं होती और ना वो हो सकती है. तो पहला स्टेप तो ये है कि मैं पहली प्लानिंग आज के हिसाब से करूं कि आज मेरी क्या लाइफ स्टाइल है, आज मेरी क्या सिचुएशन है. तो फर्स्ट प्लानिंग तो मैं आज 1 लाख का आज मंथली एक्सपेंस है तो मैं 80,000 के हिसाब से करूंगा. इन फ्यूचर अब 1 साल निकल गया प्लानिंग को, 2 साल 3 साल निकल गया, आई कम ऑन ट्रैक, मुझे दिखता है कि हाँ मैं थोड़ा पहले मैं इसको 10% कवर कर सकता था, अब मैं 30% कवर कर लूंगा. एक पॉइंट पे लगेगा कि अब मैं इसको 40-50% कवर कर लूंगा. और फिर उस तरह से 3-5 साल बाद ऐसा फैमिली मुझे लगता है कि नहीं, हम जो उस टाइम लाइफ स्टाइल थी हमारी उससे अब हम कहीं बहुत आगे आ गए हैं और अब हमारी लाइफ स्टाइल या एस्पिरेशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है. तो फाइनेंशियल गोल क्या है, कोई पत्थर में मतलब लिखी हुई लकीर नहीं है, राइट, जो मिटाई नहीं जा सकती. फाइनेंशियल गोल हमने सपोज बनाया था 6 करोड़ का एट द एज ऑफ 60, वी कैन ऑलवेज रिवाइज इट टू से 8 करोड़ और 9 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन आवर एस्पिरेशन. तो क्या होगा कि उस टाइम से फिर मैं 9 करोड़ के हिसाब से टारगेट शुरू कर दूंगा. क्या चीज वर्थफाइल नहीं है, मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल भी उतनी नहीं है. जो पार्ट है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ स्टाइल पोस्ट रिटायरमेंट के चक्कर में अपनी पूरी जो यूथ है ना उसको मैं बिल्कुल ब्लैकआउट कर दूं. दैट इज समथिंग आई विल नॉट सजेस्ट. ओके, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हियर एंड देयर ओके है, लेकिन आज मैं अपनी सारी एस्पिरेशन, सारी इच्छाओं को खत्म करके मैं सिर्फ इसी पर्पस से जोड़ूं कि मैं 60 ईयर के बाद बहुत लेविश लाइफ स्टाइल जीऊंगा, दैट इज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. यदि आपका जो मेथड है वो यदि आपका एक रीजनेबल लाइफ स्टाइल का आज है तो वो सेम आगे रहने वाला है. और यदि आज आप सोचो कि उसको आप बहुत डिप्रेस कर लोगे लाइफ स्टाइल को तो वो फिर फन खत्म हो जाएगा लाइफ के साथ. ओके, फिर वो जोड़ने में भी आपको उतना मजा नहीं आएगा. कारण क्या है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको देखने का भी आपको ना जॉय होना चाहिए. ओके, और वो जॉय तभी होता है जब मैं यदि आज मेरा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया है, मैं जब उसमें से 2,000 रुपए खर्च करता हूँ तभी उसमें से जॉय आता है. यदि मैं सिर्फ जोड़ते ही जोड़ता रहता हूँ ना तो जॉय खत्म हो जाता है लाइफ से. तो हम तो ये मानते हैं कि भाई थोड़ा जॉय भी चाहिए लाइफ में, क्योंकि इतनी लंबी लाइफ है, उसमें जॉय खत्म कर लेंगे हम तो फिर कैसे काम चलेगा. तो आपके क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट ये है ब्रीफ में इतना एक्सप्लेन करने के बाद कि आज जो है मैं उसके हिसाब से प्लान करूं. जैसे जैसे मेरी एस्पिरेशन बढ़ती जाए वैसे वैसे मैं अपने प्लान को रिवाइज करता जाऊं. वो ज्यादा रीजनेबल है बजाय ये कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आज माइंड में रखूं और उसकी वजह से मैं आज की पूरी लाइफ अपनी कॉम्प्रोमाइज करूं. ओके, और ये बहुत ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं. सी, इट इज लाइक डाइटिंग. आप यदि दिन में एक टाइम खाना खाओगे 1 हफ्ता, उससे अभी 1 हफ्ता वेट कम हो जाएगा लेकिन अगले 2 महीने में फिर बढ़ जाएगा वो. तो आपने देखा होगा डाइटिंग इज नेवर सक्सेसफुल ऑफ दिस काइंड, राइट. एक क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है ना, तो एक बैलेंस चाहिए लाइफ में.
सो सर इसी के एक्सटेंशन में एक क्वेश्चन और है कि वैसे तो ये जैसे आपने बोला कि देयर शुड बी जॉय आल्सो इन लाइफ, और स्पेशली कोविड जब से आया है तब से सबका माइंडसेट और ज्यादा ये हो गया है कि कल की किसी को पता वैसे भी नहीं है, तो वी शुड इन्वेस्ट इन टुडेज लग्जरीज आल्सो, कि अगर हमारे पास आज है तो हम आज में ही क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो थॉट माइंड में कई सारे डिसीजंस को लेके आ जाता है कि अब पता नहीं तब तक क्या लाइफ होगी क्या नहीं होगी, तो अगर पैसा आज है तो हम गाड़ी भी खरीद लेते हैं, हम घर भी खरीद लेते हैं। तो व्हाट मतलब वो बैलेंस एक्चुअली कैसे मेंटेन होना चाहिए, या क्या बैलेंस होना चाहिए? See, when it is again a very good observation. See, whenever a person says that life का तो पता नहीं है, तो आज ही खर्च कर लेते हैं, ओके? तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो सिर्फ अपनी लाइफ ही देख रहा है क्या कि वो रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि यदि इंडिविजुअल ही है, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तब तो वो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ओके? लेकिन यदि फैमिली आप पर डिपेंडेंट है, अब क्या है, जो पर्सन सोच रहा है मैं सारा आज ही खर्च कर देता हूँ, पहली बात तो इस तरह से होता नहीं है कि इंडिविजुअल सब कुछ आज ही खर्च कर ले, बट फिर भी यदि वो सोचता है मैं सब कुछ खरीद लेता हूँ, लैविश कर लेता हूँ, सपोज वो निकल जाता है बंदा, तो पीछे तो फैमिली को छोड़ गया ना। तो द पॉइंट इज वो फैमिली के लिए क्या प्रोविजनिंग करके गया है, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए वो क्या करके गया है। तो आई हैव आल्सो मेट पीपल हु से कि यार जब मैं ही नहीं रहा तो अब फैमिली क्या करेगी, कहाँ रहेगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आई हैव मेट दोस काइंड ऑफ पीपल इन माय करियर, एंड बट दोज आर फार एंड फ्यू। मोस्टली पीपल आर के बॉस मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ये थॉट रखेंगे कि भाई मेरे बाद मेरी फैमिली की भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैं आज सब कुछ खर्च कर देता हूँ। वो तो थोड़ी मैडनेस वाली बात है, वो लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में कह सकते हैं, डिप्रेशन में कह सकते हैं, बट वो लॉजिकली नहीं होता है। तो आइडिया ये है कि भाई जब भी उसको लगे किसी को कि भाई मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो वो 1 मिनट के लिए ये सोच ले कि उसके ऊपर यदि और भी लोग डिपेंडेंट हैं तो उनके लिए भी वो सोच ले। जब उनके बारे में सोचेगा तो वो यदि वो अपनी कैपेसिटी के बाहर फुलिश स्टेप ले रहा है या थोड़ा एबनॉर्मल फुलिश स्टेप ले रहा है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई बैंक एफडी थी 15 लाख की, उसको ब्रेक कर ली और कहा कि मैं तो सेल्टोस खरीद लेता हूँ, नई गाड़ी आई है, क्या रखा है दुनिया में, बाइक वाइक कब चलाऊंगा, चलो सेल्टोस खरीद लेता हूँ, देखा जाएगा क्या होता है। तो वो थोड़ा एबनॉर्मल फुलिश स्टेप है, बट नॉर्मली ऐसे करते नहीं है लोग, सोचते ज्यादा है करते कम है। बट यदि कोई कर रहा है तो एक बार को बस अपनी डिपेंडेंट्स के बारे में सोच ले, और बाकी इस सुसाइडल मिशन का तो ना कोई जवाब नहीं मेरे पास। ओके, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स का ये मतलब मिलता है कि उनको मतलब वो लेट हो गए हैं रिटायरमेंट प्लान, कि एक टाइम निकल चुका, उन्होंने कभी सोचा नहीं इतना या उस चीज को इतना वेटेज नहीं दिया। तो इफ समवन इज लेट, सपोज अब रिटायरमेंट के लिए रह ही 5-6 इयर्स गए हैं सपोज, तो व्हाट मिनिमम स्टेप डू यू थिंक कि उसको इतना तो कर ही लेना चाहिए, या ये स्टेप तो एटलीस्ट वो ले ले अब अगर लेट हो गया है तो, और फिर बाकी विल मैनेज, तो वो क्या आपको लगता है कि होना चाहिए? तो देखो, पहली बात तो वो जिस साल में भी है ना, उसको पहले तो ये एज्यूम करना चाहिए कि अभी भी प्लानिंग हो सकती है। वो लेट है, हो सकता है रिलेटिवली वो लेट हो किसी और के मुकाबले, लेकिन यदि कोई भी इंसान ये सोचता है ना, उसको ये रिकॉग्निशन हो जाता है कि मैं अभी भी प्लान कर सकता हूँ या मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे लगता है उसने पहली जंग तो ना जीत ली। क्योंकि पहली चीज ही ये रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ मुझे प्लानिंग की जरूरत है। मतलब क्योंकि हम ऐसे भी लोगों से मिलते हैं जिनको लगता है कि सब ठीक तो है, इसमें प्लानिंग क्या करनी है। तो बट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी पर्सन हु इज रिकॉग्नाइजिंग, वी हैव टू टेल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इटसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग, कि आपने सोचा। अब सवाल ये है कि क्या आप ज्यादा लेट हो, तो अब लेट और अभी तो जहां से शुरू करते हैं वहीं से हम सोच सकते हैं ना। तो as what we can tell that as a financial planner or as your financial advisor, आप जहाँ भी हो, जिस स्टेज में भी हो, वहाँ पे रियलिटी चेक कराना और क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी है वो इन्वेस्टर को बताना, वो भी जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे को 1 लाख की इनकम चाहिए तो 1 लाख की आ जाए। प्लानिंग का ये भी पार्ट होता है कि इंडिविजुअल को ये पता हो कि यदि मेरा ये फंड है
तो अब मुझे इतने अमाउंट में ही अपना काम करना है, तभी ये 20-25 years चलेगा. दिस इज ऑल्सो प्लानिंग. Planning is not only accumulating, that is the first phase. The second phase is the vesting phase, जिसको VESTING vesting phase बोलते हैं. जब हम पैसे को यूज करेंगे, जो भी हमारे पास है, तो जो हमारे पास पैसा है उसको मैं 20-25 साल के लिए कैसे मैनेज करूंगा, 20-25 साल कैसे खर्चा चलाऊंगा, वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है. तो हो सकता है वो एक्युमुलेशन फेज के लिए लेट हो, लेकिन वेस्टिंग फेज के लिए लेट नहीं होगा वो बंदा. उस पर्सन को फिर वेस्टिंग फेज को बेटर प्लान करना चाहिए यदि वो एक्युमुलेशन फेज को प्लान नहीं कर पाया है. तो प्लानिंग करने का टाइम कभी भी नहीं जाता. पर्सन या तो फर्स्ट फेज में होगा या सेकंड फेज में होगा या इन बिटवीन होगा. जिस फेज में भी होगा, प्लानिंग अपना रोल प्ले करेगी. यदि जैसे अभी अयास बोल रहे थे कि उन्होंने जो सर्वे किया है, ही इज फ्रॉम अ वेरी लार्ज इंश्योरेंस कंपनी, इज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन. तो उन्होंने जब ये सर्वे किया कि 8.5 साल में लोगों का रिटायरमेंट फंड खत्म हो जाएगा मोर और लेस, यदि आप इस 8.5 साल को 17 साल कर देते हो प्लानिंग से, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ डिसेंट जॉब व्हिच द इन्वेस्टर विल डू बाय डूइंग द प्लानिंग वर्क. मतलब यदि वो अपने रिटायरमेंट का जो खत्म होना है उसको भी डिले कर लेगा, वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा. तो प्लानिंग के लिए कोई भी टाइम लेट नहीं होता. जहां से भी हम रिकॉग्नाइज कर लें, वहीं से प्लानिंग शुरू हो जाती है. थैंक यू. आई गॉट, मतलब ये काफी रेलेवेंट था एक्चुअली कि हाँ ठीक है, अगर वो एक्यूमुलेशन उतना नहीं कर पाए, एटलीस्ट उसको रियलिटी पता हो कि उसको फिर वेस्टिंग या आगे फिर अपने खर्चे कैसे मैनेज करने हैं, या खर्चे मतलब है या उसको सेकंड इनकम करनी है. कुछ टाइम तक क्लाइंट को ये भी बताया जाता है कि भाई आप सेकंड इनकम मतलब सेकंड वर्क ले लो आफ्टर रिटायरमेंट, इफ यू आर फिजिकली कैपेबल, इफ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्क करने लगते हैं. तो मतलब प्लानिंग के बहुत सारे पार्ट है. वेस्टिंग के सेकंड जॉब हो सकता है, कोई एडिशनल वर्क हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क हो सकता है, या डिलेइंग द रिटायरमेंट हो सकता है. वो इस तरह के काम में कि उसको बोला जाए कि भाई आप सोच रहे हो थोड़ा डिले कर दो, यदि किसी प्राइवेट वर्क में हो तो मतलब that planning also has many facets to it. सिर्फ वो मनी से रिलेटेड फेसेट नहीं है, और भी सारी चीजें हैं जो रोल प्ले कर सकती हैं उसकी लाइफ में. Okay, the answer was really helpful, sir, and thanks for taking the question. Thank you. Any other query we have? Mr. Ravindra Kumar has put a query: monthly SIP versus weekly SIP, which one get good returns in long term? सर अलग से टॉपिक ले सकते हैं. जब आप सिप कर रहे हैं तो मंथली या वीकली से ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ता है. देयर इज नो डेटा टू प्रूव कि वीकली एसआईपी बेटर है या मंथली एसआईपी बेटर है. इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्चुअल में एसआईपी इंडिविजुअल करे, पैसा एक्युमुलेट करे, और कितना अमाउंट हम डाल रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यदि आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, यदि आप उसको 5,500 कर देंगे, तो ये क्वेश्चन वीकली और मंथली का खत्म ही हो जाएगा. बिकॉज 5,500-6,000 will get you more money than a 5,000 SIP. एंड तो आप कितना प्रिंसिपल डालते हैं, कितना डिसिप्लिन से करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मैटर करेगा. और ऐसा कोई, बिकॉज वी हैव डन ऑल काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज, देयर इज नो डेटा विच टेल्स के मंथली SIP बेटर है या वीकली SIP बेटर है, या 10 तारीख की SIP बेटर है या 20 तारीख को SIP जो लगती है वो बेटर है. ऐसा कोई कंक्लूसिव डेटा नहीं है. अलग अलग जो स्टडी करते हैं अलग अलग टाइम पे, तो अलग अलग रिजल्ट देते हैं. तो आप इसकी चिंता मत कीजिए कि किस टाइप की वीकली करें या मंथली करें. आप SIP करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, अच्छे फंड्स में इन्वेस्टेड रहिए, द मनी विल गेट क्रिएटेड. So as we do not have any question, we would close this session, and I'm really thankful to all of you for participating and for being here for such a long session, and I hope it was useful. And we meet next time, next month on second Saturday again at 4 p.m. with a new topic. Thank you all and have a nice time. Have a nice weekend. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.